Hello everyone. So today we are here for this how to plan your studies lecture along with little bit of motivation here and there. As we all are aware, now you've just completed your group 1 classes or maybe towards the end of it, okay? Most of you all must be having your May exam, I'm sure. Considering that now there's a lot of confusion in our minds always, what exactly studies are to be done, how things are to be done. And there's actually nobody really who can guide you properly in this area because everyone just teaches, we are done. Then the students are left, there ki karo apne hisab se. Of course, we guide you a lot. But end of the day, the whole thing has to be done by the students, correct? So, being a merit ranker, what has happened is, many times students keep asking, ma'am, how to study, what is to be done, how things are to be covered. And it's like, you cannot tell everything each and every time. So what I had done is, about 2 to 3 years back, I have made this entire technique, okay, which I call my A to Z technique. This A to Z technique which I have made is purely devised by me. I've already given it for copywriting because I don't want anyone to copy that. And it is out of my experience, out of what all things I've seen, even out of students' experiences that I've developed this technique, okay? And it's a time-tested technique which I'm sure is going to help you all for 100%, provided you follow it completely, okay? This thing is going to not just clear your doubts and your problems, plus it's going to give you that push. वो जो push मिलता नहीं हमको, दिन भर हम लोग क्लास करते रहते, पढ़ाई करते रहते, लेकिन end of the day देखा गया तो are we really putting in the efforts? तुमको लगता है जो करने चाहिए, तुमको लगता है efforts डाल रहे हो तुम पूरी? नहीं, you're not putting it, correct? ऐसा होता है रोज़, अरे कितने थक गए यार, दिन भर क्लास करके, होता है शाम को होमवर्क के टाइम जाने देना, आज के दिन अरे बहुत पक गया, होता है करेक्ट? और फिर जब अपना वीकेंड आता है तब तो अपना फेवरेट एक्सक्यूज़ होता ही है, अरे मंडे से शुरू करते, होता है राइट? वो सब जो चीज़ें होती है, करेक्ट? वाई इज़ दैट हैपनिंग एंड वाई आर वी नॉट एबल टू गेट इन टू इट? तो उसका छोटा सा लाइक आई सेड, इफ़ यू फॉलो दिस यू विल बी एबल टू डू इट. तो इसमें द होल आइडिया अबाउट दिस इज़ टू A to Z, मतलब ऑब्वियसली 26 पॉइंट्स आर गोइंग टू बी देयर. वो 26 पॉइंट्स जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे, आई एक्सप्लेन टू यू हाउ इट इज़ टू बी डन. उसी पॉइंट में तुम लोग मुझे बोलते जाओ कि येस हैव यू एक्सपीरियंस दिस. आई वॉन्टेड टू बी इंटरएक्टिव. सिर्फ मैं बोलती जाऊँगी, तुम लोग सुनते जाओ. नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी फन, ओके? We have to see to it that you understand and of course implement it later on, but at the same time abhi jitna ho sake we'll try to make it interactive. Got it? So A to Z technique, like I said, totally made by me and I'm sure it will give you success provided you implement it religiously, पूरा wholeheartedly. ठीक है? हो सके तो लिख के लो, आई थिंक दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल. बाद में अपने स्टडी टेबल के उधर लगा देना A to Z, देखते रहना उसको, रोज़ मैं फॉलो कर रहा हूँ या नहीं. सब अगर कर रहे हो तो गोइंग एकदम राइट ट्रैक पे, याद रखना है बात, ठीक है? तो चलो, सो लेट्स स्टार्ट विथ A to Z. सबसे पहले what I have now, as I said, it's devised by me, okay? Starting with A. Now what does A stand for over here? सबसे पहले A stands for attitude. Now tell me one thing. सुना है हमने ऐसे, अरे ये बहुत डिफ़िकल्ट है बाबा, सुना है तुमने? हाँ, वो टिपिकल लोग आकर बोलते रहते अपने को, जो लेना देना है नहीं दूर दूर तक अपना, कोई तो दूर का रिश्तेदार रहेगा लेकिन आकर बोलेगा अरे ये कर रहा है बंदा, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट, होता है ना? तो यू थिंक दैट नेगेटिविटी शुड स्पॉइल अस, होना चाहिए? नहीं ना? तो फिर व्हाट इज़ दिस एटीट्यूड अबाउट? दिस एटीट्यूड इज़ हैविंग दिस पॉजिटिविटी कि बाबा आई कैन डू दिस, ओके? द होल पॉइंट कम्स फ्रॉम देयर. पता है ऐसे बोलते हैं कि इफ़ एट ऑल यू स्टार्ट प्रॉपरली, यू आर इन द करेक्ट डायरेक्शन, हाफ योर जर्नी इज़ ऑलरेडी कवर्ड. इट्स अबाउट नॉट गेटिंग बॉगल्ड डाउन बाय पीपल, ठीक है? सो एटीट्यूड हियर मीन्स अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड. पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव. अरे सिर्फ 3% रिजल्ट आता है, ठीक है, 3% आता है, आई एम गोइंग टू बी इन दैट 3%, दैट इज़ टू बी द एटीट्यूड. अगर मैं वो 3% में somehow I land up in that 3 to 5%, I can be sure tomorrow after becoming a CA कि yes, I am worth it. राइट? अगर 95% अपना पासिंग होता, 95% ऐसे CAs निकलते रहते, तुम CA बन भी जाते ना, इतना वैल्यू तुमको मिलता नहीं है. एक सिंपल सी बात है, वैल्यू कब ज़्यादा है? जब सप्लाई कम है. सिंपल. अपना इंस्टीट्यूट या फंडे को बहुत अच्छे से फॉलो करता है, ठीक है? वो देखते हैं कि डिफ़िकल्ट पेपर्स हो, देखते हैं कि स्टूडेंट्स विल
they will keep trying to push you all down and you have to obviously come up. So the attitude here is going to be don't give up and positive. समझा? तो जब तुम ए एटीट्यूड लिखते हो तो वो भी लिखो, डोंट गिव अप एटीट्यूड एंड व्हाट एल्स, पॉजिटिव एटीट्यूड. ए में एक और पॉइंट है विच आई हैव, दैट इज हैविंग अ पॉजिटिव एटमोसफियर. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? वहाँ पे दो छोटे पिक्चर्स हैं. अपनी रूम की हालत कैसे होती देख लो ज़रा. तुमको पता है ना अपनी रूम की हालत कैसे रहती है? सब जगह पे बुक्स पड़े हुए हैं, राइट. कोई तो कोने में से अरे वो बुक निकाल, अरे वो होमवर्क के लिए वो नहीं मिल रहा है, होता है. कैलकुलेटर किधर गया, होता है ना. बस वही पॉइंट है. जब तुम ऐसे व्हाट यू से एटमॉस्फेयर में बैठते हैं फिर बोलते कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, होगा क्या वो अंदर से? फर्स्ट थिंग, जो क्लटर रहता है उसको क्लियर करो. जैसे तुम अपना फिजिकली अराउंड यू क्लटर क्लियर करते हो ना, लेट बिलीव मी, मेंटली अपना क्लटर क्लियर होने लगता है. ओके, इट बिकम्स लाइक हाँ चलो सब कुछ क्लीन रखा है, यहाँ पे बुक्स रखे सब यहाँ पे, ये मेरा जो स्टडी टेबल है पढ़ने के लिए, राइट, सिर्फ सामान रखने के लिए नहीं है. वो एक पॉइंट है, छोटी सी बात है, लेकिन सी हाउ इट चेंजेस इट. तुम सिर्फ जाकर अपने रूम क्लीन करो और अपने जगह जो है ना बैठने की, पढ़ाई करने की, उसको क्लीन करके देखो. यू विल स्टार्ट फीलिंग अरे वो डेस्क इज कॉलिंग मी, करेक्ट ना. अभी तो इतना सामान पड़ा है, कोई देखने को रेडी नहीं उधर. See the difference, right? So that is what I mean by atmosphere. Create it. It will not happen now automatically. Most of you all hostelites रहेंगे. घर पे तो चलो मम्मा रहती है, सब क्लीन कर देती है अपनी, राइट. यहाँ पे कैसे होगा? वो अपना वो रूममेट आता है, वो कुछ फेंकता है, हमको कुछ फेंकते. फेंकने में तो कंपटीशन चलता है अपना, कौन किधर कितना गंदा करे, करेक्ट. सो वो नहीं होना चाहिए. गॉट माई पॉइंट? सो एटमोसफियर बेसिकली मीन्स दैट. क्लियर? नाउ कम्स माई बी पॉइंट. अगेन एक बड़ा क्वेरी, which books to maintain? I mean maintain in the sense how should I refer, which books I should refer, notes कैसे बनाऊँ, करेक्ट ना. स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट का रेफ़र करना या नहीं. तो उसके लिए मेरा आंसर बहुत सिंपल है. ओके, सबसे पहले यू शुड ऑलवेज हैव योर क्लास नोट्स कंप्लीट. क्लास नोट्स क्यों? क्योंकि 3 महीने 3.5 महीने हम लोग क्लास में बैठते हैं, करेक्ट. हम लोग वो करते, हम अपना होमवर्क करते, करेक्ट. वी आर फेमिलियर विद दैट. पहले क्लास नोट्स को हमेशा इंपॉर्टेंस दो. सेकेंडली गिव टू आवर ICI. एक्चुअली ICI इज़ नंबर 1, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. बट अपने भी जो नोट्स होते हैं सारे क्लासेस के, हम लोग कहीं ना कहीं ICI का बेस तो लेते ही है. सो कंसिडरिंग दैट वो और ICI का नोट्स अगर तुम लोगे, एंड ICI मतलब ICI एवरीथिंग. मॉड्यूल भी इंपॉर्टेंट है उसमें. मॉड्यूल नहीं तो इतना बड़ा मॉड्यूल कौन पढ़े बाबा. नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ पूरा पढ़ो, उसको पढ़ने का एक टैक्ट होता है, ठीक है. दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. सेकेंडली अपने जो ICI का प्रैक्टिस मैनुअल, अब आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम PM, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट. तो वो PM भी अच्छे से करो. एंड RTP जो तुम्हारे अटेम्प्ट का रहेगा उसमें सारे अमेंडमेंट सब कुछ नया जो भी है सब कुछ रहेगा, वो RTP. एटलीस्ट ये 3 थिंग्स करो. मॉड्यूल में नॉट द एंटायर थ्योरी बिकॉज थ्योरी इज़ टू मच. एटलीस्ट सम्स तो कर सकते ना, द प्रैक्टिकल थिंग्स. एंड PM यू डू, एंड थर्डली RTP. जो पास्ट एग्जाम पेपर्स है उसके बारे में मैं टॉक लिटिल लेटर, ठीक है. सो बुक्स के लिए ICI सोर्स नंबर 1, सेकेंड आर क्लास के नोट्स सोर्स नंबर 2, और थर्ड अगर तुमको कोई बुक रेफ़र करना है, इफ़ यू वांट टू रेफ़र टू सम बुक यू कैन रेफ़र टू सम टेक्स्ट बुक ऑल्सो. बट होता क्या, ये करते करते ऐसी हालत ख़राब हो जाती है. आई कैन अंडरस्टैंड. सी एज अ टीचर आई टेल यू हाँ करो करो करो. मुझे पता है क्या हालत होती है जब हम पढ़ते हैं. टीचर बोलते सब करो, अरे सब कैसे करें, इतना सा टाइम, उसमें दुनिया भर का अपने ऊपर बोझ रहता है, राइट ना. तो कैसे करेंगे? सो कंसिडरिंग दैट बुक्स यू कैन कीप ऑप्शनल फॉर एटलीस्ट फ्यू सब्जेक्ट्स, नॉट ऑल, ठीक है. लाइक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में बुक्स रखा तो इवन बेटर. आई होप इट्स क्लियर. बुक्स का समझ गया. पॉइंट नंबर C, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंट एफर्ट्स, राइट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंसिस्टेंट एफर्ट्स? तुमने देखा है कभी वुड कटर जब वो वुड कट करता है, करेक्ट, एक ट्री है उसको कट कर रहा है, कट 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 फुल टाइम कर रहा है. क्या होता है उसके टाइम पे? कम से कम 200 कट्स करता है वो, राइट. डज इट गेट ब्रोकन इन द फर्स्ट शॉट? नो. लास्ट का 200 शॉट्स के बाद वो कट हुआ. इसका मतलब क्या वो 200th शॉट वॉज कटिंग इट? नहीं. व्हाट वॉज इट? वो जो 199 पहले कर रहा था, करेक्ट, दैट इज मेकिंग इट वीक. एंड सिर्फ इट शोज द 201, अरे ब्रेक किया, लेकिन डोंट फॉरगेट उसके पीछे 199 के हिट्स हुए.
तब जाकर वो कट हुआ है, राइट? सो कंसिस्टेंट एफर्ट्स आर एग्जैक्टली लाइक दैट. हमको पता भी नहीं होता, हम लोग अपने गोल की तरफ जाते रहते. एक पॉइंट आता है जहाँ पे वी फील कि अरे क्या हो रहा है, वी आर नॉट हिटिंग द नेल, बट यू आर वर्किंग समवेयर. यू आर वर्किंग मतलब यू आर गोइंग समवेयर, बट फॉर दैट यू हैव टू वर्क. समझा? तो कंसिस्टेंट एफर्ट्स मीन्स ओनली यू हैव टू गो इन अ कंसिस्टेंट वे, कंटिन्यूसली करना पड़ता है. ओके, क्या हुआ था जब माई एग्जाम वॉज देयर, ओके, हम लोग को तुम लोग के जैसे नहीं था वन डे छुट्टी इन बिटवीन, यू नो, कंटिन्यूस पेपर्स होते थे. तो आई वॉज डूइंग माई PE2 एंड इनकम टैक्स का पेपर था, ठीक है. अभी इनकम टैक्स तुमको भी पता एक दिन में पूरा होना पॉसिबल ही नहीं है. तो मैंने सुना था मेरी एक फ्रेंड का, कोई एक फ्रेंड थी मेरी, शी यूज टू लाइक यू नो पूरा नाइट वो पढ़ती थी. इट वॉज लाइक हर स्टाइल. वो 6 दिन एग्जाम के कभी सोती नहीं थी. हम लोग को 6 पेपर्स थे, 7 नहीं थे. तो शी वॉज लाइक दैट. अब मैंने वो सुना था और मैंने सोचा था इनकम टैक्स 5th पेपर है, इसके बाद से एक पेपर था IT का, तो वाई नॉट यू नो वो फुल स्टंट करने का, लाइक रात भर पढ़ने का, बिकॉज इनकम टैक्स वैसे ही ख़त्म होने वाला नहीं था. सो व्हाट आई डिड वाज, मेरा यूजुअल स्टाइल था कि सुबह उठ के पढ़ना, बट उस दिन व्हाट आई डिसाइडेड कि रात भर पढ़ने का. ओके, आई ब्रोक माई यूजुअल स्टाइल एंड फिर रात को पढ़ने का है ना, तो फिर एग्ज़ाम से आने के बाद थोड़ा सो जाने का, फिर रात भर पढ़ना है. तो आई वेंट टू स्लीप 2-3 घंटे, ठीक है. 2-3 घंटे के बाद फिर मैं मॉम वोक में आपकी चल उठ अभी पढ़ाई कर. फिर पढ़ाई शुरू किया मैंने, ठीक है. 10 बज गए, 11 बज गए. नॉर्मल मेरा 10-11 सोने का टाइम था, ठीक है. सो हो गया. फिर कुछ ये नहीं हो रहा था, मतलब यू नो आई स्टार्टेड फीलिंग लिटिल स्लीपी. इतना सोने के बाद भी 11, 12, 1, 2 तक पढ़ाई की. फिर 2 के बाद आई वाज लाइक बस अभी आई कांट टेक एनी मोर, मुझे बहुत नींद आ रही है. 2 घंटे सोंगे, 4 बजे उठेंगे. वैसे भी मेरा रोज़ का रूटीन था 4 बजे उठना, ठीक है. दैट वॉज हाउ आई यूज्ड टू स्टडी. सम पीपल स्टे लेट एट नाइट, सम पीपल गेट अप अर्ली. तो आई वॉज दिस अर्ली राइजर. तो 4 बजे, 2 बजे सोती हूँ, 2 घंटे में आई विल बी डन, ठीक है. और फिर 4 बजे उठूँगी. लेकिन मैं जब 2 बजे सोई, यू वोंट बिलीव दिस, मैं 9 o'clock तक उठी ही नहीं. 9 o'clock, 7 hours आई एम स्लीपिंग. ओके, माई मॉम वॉज वेकिंग मी अप सिंस 6 o'clock. 4 बजे नहीं उठाया, शी न्यू आई वुडंट गेट अप. नहीं, बिकॉज क्या किया था मैंने, चेंज किया ना अपना रूटीन. तो आई कुडेंट गेट अप, ठीक है. कुडेंट गेट अप मतलब प्रॉपरली मेरा पूरा पढ़ाई हुआ ही नहीं. आई थिंक 11 से 2 का टाइमिंग था पेपर का, कुछ तो भी थोड़ा पढ़ के आई वेंट एंड आई हैड नॉट कम्प्लीटेड माई 100% एट ऑल. मैं एट ऑल बोल रही हूँ, शायद 30% पढ़ा रहेगा मैंने. जो रिविजन बोलते हैं ना एक दिन पहले पूरा करना चाहिए, कहाँ से, सिर्फ 30% पढ़ के आई वेंट. ओके, टैक्स का पेपर दिया, अच्छे से गया, नो प्रॉब्लम. एंड फिर जब रिजल्ट आया, आई वॉज शॉक टू नो दिस, आई हैड गॉट द हाइस्ट इन इनकम टैक्स इन द कंट्री. Okay, yes, I was the highest and you won't believe this is what I had done one day before the paper. उस टाइम पे एक बात तो समझ गया, ये एक दिन का पढ़ाई का खेल था ही नहीं. ये जो 3 महीने कंसिस्टेंटली आई वॉज डूइंग टैक्स, आई यूज्ड टू लव टैक्स, तो मैं करती थी उसको रोज़. वो कंसिस्टेंसी पेड ऑफ एंड में. वो एक दिन का पढ़ाई बिल्कुल मैटर नहीं किया. यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. वो कंसिस्टेंसी करो, इट विल पे यू डेफिनेटली इन सम फॉर्म और द अदर. ठीक है, राइट? समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? और आर यू अग्रीइंग टू व्हाट आई एम सेइंग? हाँ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. चलो फिर डी जाते हैं. अभी डी में क्या है? 2 things आई हैव इन डी. डिस्कस विथ फ्रेंड्स, मतलब मूवीज़ छोड़ के, राइट, इंडिया के बारे में छोड़ के, क्या हो रहा है अपने मोदी के बारे में छोड़ के, बिकॉज वो तो अपने हॉट टॉपिक्स रहते हैं, राइट. वो सब छोड़ के क्या डिस्कस करना है? क्या डिस्कस करना है? स्टडीज़ के बारे में, राइट. बेसिकली व्हाट यू शुड डू इज़, द मोर यू डिस्कस, सी डिस्कशन डजंट मीन कि बैठ के 2 घंटे बातें करो. ओके, जनरली कि तू ये पढ़ रहा है, तू ये कर रहा है, कुछ ना अलग मालूम पड़ा. हो सकता है मेरा एक पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, जो सामने वाला फ्रेंड मुझे बोल दे, करेक्ट. हो सकता है कुछ चीज़ आई हैव मिस्ड आउट, तो वो मुझे बोल दे. सो डिस्कशन ऑलवेज हेल्प्स यू टू गो बेटर एंड बेटर. ओके, डिस्कशन लेकिन लिमिटेड रखने का. से वीक में से एक बार तो मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स को, राइट और नो, मतलब इन द सेंस इनफॉर्मली. तो क्लास में आने जाने मिलना इज़ नॉट कॉल्ड मिलना. ओके, उस टाइम पे पॉइंट करने का, ये वीक में अपना ये है टारगेट और वीकेंड में हम सब डिस्कस करेंगे. तो डिस्कशन विल डेफिनेटली गेट यू समवेयर. ओके, हेल्दी डिस्कशंस रखने का एंड लिमिटेड टू आवर सिलेबस. दुनिया भर की इधर उधर की बातें नहीं करने की. दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट. अगेन वन मोर डी आई हैव, दैट इज डिवाइड योर सिलेबस. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, डिवाइड योर सिलेबस का क्या मतलब है? ओके, सी इफ आई टेक द होल चंक इन फ्रंट ऑफ मी, राइट, अपने 7 बुक्स लेकर बैठ गए, 7 सब्जेक्ट्स के, करेक्ट और नो, सब इतना सारा. जब मैं देखूँ अरे कॉस्टिंग में 15 चैप्टर है, एफ में 7-8 कितने 10 चैप्टर्स, कितने तुमको एफ में 10 चैप्टर्स है, वट एवर. अकाउंट्स में अरे बाबा 20 चैप्टर्स है. यू गोइंग टू सी लाइक दिस ना, तो इतना बड़ा बर्डन लगेगा, इतना बड़ा माउंटेन लगेगा सामने. इट्स नॉट गोइंग टू वर्क.
तुमको क्या करना है फिर, डिवाइड योर सिलेबस। हर सिलेबस को 6 से 7 पार्ट्स, 6 to 7 पार्ट्स में डिवाइड करने का, हर सब्जेक्ट को, फाइन। और 6 to 7 पार्ट्स व्हेन यू विल डिवाइड, तो हर वीक का ये पार्ट मेरा इस वीक का टारगेट है, हर सब्जेक्ट का एक पार्ट यू शुड पिकअप। अगर आई टेक अप वन हार्ड पार्ट ऑफ इनकम टैक्स, तो आई टेक अप सम ईजी पार्ट ऑफ अकाउंट्स, आई टेक वन हार्ड पार्ट ऑफ कॉस्टिंग, आई टेक वन ईजी पार्ट ऑफ FM। वो बैलेंस करना, दैट इज़ द स्किल, ठीक है। सिलेबस को हमेशा पार्ट्स में डिवाइड करो, नॉट चैप्टर वाइज बट पार्ट वाइज। ये पार्ट में 4 चैप्टर्स, ये पार्ट, अरे कैपिटल बजटिंग बहुत बड़ा, ये एक ही पार्ट है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे डिवाइड करते हो, नो प्रॉब्लम, बट ऐसा देखो कि ऑल 6 to 7 पार्ट्स आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स। समझा मेरा पॉइंट? उससे यू विल हैव अ वेरी गुड वे ऑफ कंप्लीटिंग योर स्टडीज, ठीक है, ओके। ई पॉइंट, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। बहुत बच्चों को लगता है सेम चीज़ है, सेम चीज़ है क्या? क्या डिफरेंट है? एफिशिएंसी मतलब क्या? अबिलिटी टू डू समथिंग, राइट? और इफेक्टिवनेस मतलब हाउ effectively we are preparing, how efficiently we are working and how effectively we are preparing is efficiency and effectiveness, बराबर है, बट मेरे को elaborate नहीं हुआ वो, हाँ हाँ, इन टाइम, बराबर ना, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, लाइक दैट, ओके, ठीक है, आई गॉट इट, बोलो। दैट वुड बी, या आई वुड से बोथ ऑफ दिस टुगेदर, 2+2 क्या होता है? एफिशिएंसीज, कितना इनपुट डाल रहे हो तुम। देखो, सिर्फ बुक खोल के बैठा और ये 12 घंटे बुक खोल के बैठा, बुक खोल के बैठा है, किया कुछ नहीं, राइट? सो इन टर्म्स ऑफ व्हाट, आउटपुट योर ज़ीरो, इनपुट डाला है तुमने। लेकिन एक बात होती है, हर चीज़ में यू हैव टू टेक केयर ऑफ एफिशिएंसी, मतलब इन टर्म्स ऑफ इनपुट, कितना टाइम दिया इसके लिए, राइट? और टाइम देने के बाद वो करेक्ट आया या नहीं, दैट इज़ कॉल्ड इफेक्टिवनेस। तो मैं अगर 12 घंटे पढ़ूँ, वेरी गुड, अमेजिंग, लेकिन वो 12 घंटे में मैं सिर्फ 7 आवर्स का आउटपुट दूँ तुमको, तो आई एम एफिशिएंट बट आई एम नॉट इफेक्टिव। यू गॉट इट? तो एफिशिएंट मीन्स मेरे पास है वो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है कि मैं 10 घंटा बैठ सकती हूँ पढ़ाई करने को, नो प्रॉब्लम, पर उसमें तुम कुछ रिजल्ट्स भी दो ना बाबा, दैट इज़ इफेक्टिवनेस। तो वो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। वाइल स्टडिंग ऑल्सो पूरे मन से यू हैव टू बी इन दैट, ठीक है। इधर उधर ध्यान देने का, इधर उधर कुछ भी अपना मोबाइल ये वो सब कुछ, नो डिस्टर्बेंसेस, राइट? सो उसका ध्यान। देन F स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी। एक होता है कि कितने बार हमको सिलेबस कंप्लीट करना है अपना, राइट? तो एक सिंपल चीज़ है, अपने इंस्टीट्यूट के रूल के हिसाब से आई वुड से, एंड अगेन आउट ऑफ एक्सपीरियंस, 3 रीडिंग्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट इज़ अ मस्ट. When I say 3 readings, I mean minimum 3 readings, okay? Minimum 3, get that clear. And one day before the exam का reading is not counted in this. वो बाबा एक दिन पहले मैं करने वाला, वो मेरा 3rd reading है, वो नहीं counted है. 3 readings have to be completed. उसके बिना तुम सोचो ही मत कि तुम पास होने वाले हो. Yes? Class studies are not included, my dear. No, class studies are not included. वो first reading नहीं है तुम्हारा, ठीक है? When I say reading, I mean self study, okay? So class में है, तुमको एक guidance मिल गया अभी, ठीक है? जब तुम खुद पढ़ोगे, that will be your first reading. ठीक है? So अभी तो start करना है तुमको. Don't think एक हो गया है मेरा. ना ना ना, 3 बाकी है. Clear with it? Then G stands for group studies, right? ग्रुप में पढ़ाई करने का या नहीं? बिल्कुल नहीं. Why not? Why? बिकॉज स्टडीज़ होता ही नहीं ग्रुप में, ठीक है? एक्सपीरियंस है, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है? जब आई वॉज स्टडिंग, ओके, मैं थोड़ा दूर रहती थी, ओके, आई टू स्टे फार, एंड पता चला कि अरे मेरे फ्रेंड्स सब बैठ के पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, ठीक है? एंड आई वॉज फीलिंग लेफ्ट आउट. अरे उधर अकेले बैठी हूँ मैं, इधर फ्रेंड्स लाइब्रेरी में कितना पढ़ रहे हैं, और वो बोलने के अरे 12 घंटे बैठे, आज 14 घंटे बैठे, इनका कॉम्पिटिशन हो जाता था उधर. तो आई वॉज फीलिंग लेफ्ट आउट. मैं बोली मम्मा को, नहीं मैं जाती हूँ, आई विल गो एंड डू ग्रुप स्टडीज़. तो मम्मी बोली ज़रूरत नहीं, इधर बैठ, सब अच्छे से पढ़ाई हो रहा है, सब कुछ देखो घर पे है, वाई यू गोइंग? नहीं आई विल गो. 1 घंटा ट्रैवल करके आई टू कम हियर टू डू ग्रुप स्टडीज़, ओके? आई लाइब्रेरी में बैठी, फर्स्ट डे बैठा, पहला 1 घंटा हुआ रहेगा पढ़ाई, फिर उसके बाद हम लोग 6 फ्रेंड्स थे, ठीक है? उसमें से एक फ्रेंड, अरे मैं बोर हो गया,
बोर हो गया ना, तो सब उसको पेप अप करने को चल बाहर. फिर एक फ्रेंड थोड़ी देर के बाद, अरे चाय पीना है, अरे बहुत नींद आ रही है, चल 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 सब चलो. समझाना व्हाट वाज हैपनिंग. तो इट इज़ लाइक इधर एक उदास है, सबको वो सैड करता है. नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलता है, यू नो. तो ऐसा करके कुछ नहीं, पूरा दिन में 12 घंटे थी मैं उधर लाइब्रेरी में, बट इफेक्टिवली स्टडीज़ 6 घंटे का भी नहीं हुआ रहेगा, बिकॉज एक भी फ्रेंड डाउन तो हम सब अप, चल टाइम पास करते. व्हाट सेंस डज इट मेक. तो दिस इज़ व्हाट 2 दिन किया मैंने, फिर उसका ऐसे नहीं फॉरगेट इट, मैं चुपचाप मेरे घर पे ही बैठने वाली हूँ. हाँ, जिनको ऑप्शन नहीं होता लाइब्रेरी में बैठना, ऐसे लाइब्रेरी ज्वाइन करो जहाँ पे यू डोंट नो एनीवन. एक ही चीज़ है वो, ग्रुप में बैठ के पढ़ाई होना पॉसिबल ही नहीं है. यू आर गोइंग टू डू टाइम पास, बाउंड टू डू टाइम पास. अरे उम्र ही है ऐसी, कम ऑन, 18-19 में कौन पढ़ने वाला है ग्रुप में बैठ के. थिंक अबाउट इट. ठीक है, इससे अच्छा चुपचाप अपना अपना अकेले पढ़ो, नहीं तो ऐसे जगह पे जाओ नोबडी नोज यू, बात करने का सवाल ही नहीं उठता. ठीक है, क्लियर. सो ग्रुप स्टडीज, नो, दैट्स इंपॉर्टेंट. फिर आता है एच पॉइंट, दैट इज सम हॉबी, राइट. क्या होता है सीए करते करते मेरे हिसाब से तो यार कुछ बचता ही नहीं अपना. 21 ईयर्स में सीए बने, मतलब वो टाइम जहाँ पे पीपल आर एंजॉइंग कॉलेज में, और हम लोग क्या कर रहे हैं, दिन भर क्लास, पढ़ाई और ऑफिस. करेक्ट ना. इनफैक्ट अपनी बातें भी सीए तक ही रह जाती है. कैन वी टॉक अबाउट एनी अदर टॉपिक एक्सेप्ट सीए. थिंक अबाउट इट. आई कैन बेट ऑन यू कि आधा घंटा कोई भी टॉपिक में बोलो सीए छोड़ के, nobody will be able to, बिकॉज हम लोग ऐसे ही हो गए. ठीक है, वी आर सो मैकेनिकल, सो मशीन बन गए हम लोग कि बस सुबह उठा, क्लास को भागा, अगर आर्टिकलशिप रहेगा तो दिन भर ऑफिस, शाम को वापस क्लास, रात को थोड़ा बहुत होमवर्क, थक गए, मर ही गए. थकना तो दूर की बात है. ठीक है, एंड फिर अगेन सुबह वापस चालू. संडे को भी छुट्टी नहीं देते हैं. आई मीन क्या कर रहे हैं टीचर्स. ठीक है, कहने का मतलब वी हैव वेरी लेस टाइम फॉर दिस, बट दिस इज़ अ मस्ट. ये एक ही चीज़ है विच विल कीप यू ड्राइविंग, रिमेंबर. मतलब गिव सम टाइम, मैं नहीं बोलती हूँ ज़्यादा टाइम, बट वीक में से कम 2 आवर्स यू कैन गिव फॉर दिस. वॉट एवर यू लाइक. Whatever you like means what? It could be gardening, it could be trekking, it could be just walking, correct? It could be going out somewhere. Going out for a movie can also be counted as a hobby. Movie seeing is a hobby. अच्छा. Sleeping also must be a hobby according to you, है ना? Relaxing. अरे बाबा उसको hobby नहीं बोलते हैं. ठीक है, टीवी देखना, मूवी देखना is not going to make you refreshed. It's in fact going to do what? Make you sadder only. ठीक है, सो इट इज़ सैडर इन द सेंस, नॉट सैड बट टायर्ड. तो कौन सा फ़ायदा हुआ. बट अगर तुम ट्रैक को जाओगे, करेक्ट, 1 घंटा भी ट्रैक करके यू विल फील रिफ्रेश्ड. एक एक मेरा एक स्टूडेंट था, ही इज़ अ CA नाउ, मेरिट रैंक का था, फर्स्ट अटेम्प्ट ही था. एंड उसका एक बार ना फाइनल में मुझे कॉल आया था. ठीक है, फाइनल का छुट्टी था उसका चल रहा था. ही कॉल्ड मी एंड ही इज़ लाइक, मैम आई लव प्लेइंग द गिटार, यू नो, एवरी डे कम से कम 20 मिनट्स. इफ़ आई डोंट प्ले आई डोंट फील गुड. तो कैन आई कैरी ऑन, क्योंकि मेरा भी 1 महीने पे एग्ज़ाम है. तो मैंने बोला ऑफकोर्स, कितना 20 मिनट्स, नॉट अ प्रॉब्लम. वो 20 मिनट्स वो करके ही यूज़ टू फील हैप्पी द होल टाइम. वर्थ था ना वो 20 मिनट्स, राइट. वो एग्ज़ाम के दिनों में भी करता था 20 मिनट्स, वट एवर दैट गिटार का प्लेइंग. कुछ नहीं उसको ये था, एंड ही वुड डू इट, एंड ही वुड डू इट रियली वेल. एंड एग्ज़ाम के दिनों में करके भी ही केम इन द मेरिट. ऐसा नहीं कि इट डिस्ट्रैक्टेड हिम, बट इट हैज़ टू बी लिमिटेड टाइम एंड इट शुड रिफ्रेश यू. ये 2 चीज़ों का ध्यान रखो. कुछ हॉबी है तुम्हारा? क्या पूछ लिया, CA स्टूडेंट को हॉबी है क्या? क्या है? व्हाट यू ऑल डू? प्लेइंग पियानो, सी गुड. और फुटबॉल खेलना, वेरी नाइस. इस टाइप का हॉबी आई एम टॉकिंग. यस दैट बॉय. बास्केटबॉल खेलना, आई मीन प्लेइंग गेम्स इज़ वन ऑफ द नाइस थिंग्स. कितना खेलते हो वीक में से? कुछ नहीं, दिन भर तो क्लास करते रहते, कहाँ करेंगे, राइट. संडे के दिन थोड़ा टाइम निकालो, उसमें भी क्लास रहता है, वो भी एक्स्ट्रा. निकालो, कुछ नहीं, पढ़ाई 1-2 लेक्चर बंक किया, कुछ नहीं होता है. ठीक है, इट्स ओके. दिल बोलता है खेलना है, दिमाग बोलता है पढ़ना है. दैट्स आई थिंक हाउ इट इज़, है ना. तो व्हाट यू शुड डू. दिल की सुनो या दिमाग की सुनो. पूरा 7 डेज में से 6 डेज में दिमाग की सुन रहा हूँ ना, 1 घंटा तो दिल की सुन सकता हूँ. बिग डील, ऑफकोर्स आई कैन डू इट. ठीक है, क्लियर. हॉबीज़. चलो नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ दैट. आई, इट्स कॉल्ड इनोवेटिव टेक्निक्स. इनोवेटिव टेक्निक्स ऑफ स्टडिंग. ठीक है, वन ऑफ द इनोवेटिव टेक्निक्स इज़ लाइक मेमोरी टेक्निक्स. तुमको पता है ना, मेमोरी टेक्निक्स में हम लोग अपने वी फॉर्म these memory techniques to remember things, okay. So we have that kind of thing. वो एक टेक्निक हुआ. there are lot of techniques of studying. तुम फ्लो चार्ट बनाओ, ठीक है,
तुम पॉइंट फॉर्म में करो उसको, ऑल इनोवेटिव टेक्निक्स। एक माइंड मैपिंग का टेक्निक होता है, पता है जब हम लोग एक ही नोट्स को या एक ही बुक को 3-4 बार पढ़ते हैं तो हमको पता होता है ये पेज में इधर ऐसा है। हुआ है तुम लोग के साथ वो? एग्जैक्टली उसको बोलते हैं माइंड मैपिंग। मतलब वो क्वेश्चन आया ना तो मेरे को आता है अरे ये साइड में इधर नीचे था, वो उधर उधर कोने में, एंड यू कैन एक्चुअली रिमेंबर वो क्या था। ओके एक पॉइंट आता है जब मैं 3 बार सम सॉल्व करती हूँ मेरे को आंसर भी पता होता है। दैट्स नॉट अ गुड थिंग बट होता है ऐसे। सो वो भी एक टेक्निक होता है, द प्रैक्टिसिंग दैट यू डू ना, तो उसमें तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाता है ऐसे ऐसे करना है इसको। तो अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करो हर एक सब्जेक्ट के पार्ट के। देयर आर डिफरेंट वेज एंड टेक्निक्स ऑफ लर्निंग। ऑफकोर्स जो भी तुम सीखते हो यू लर्न दोज टेक्निक्स ऑटोमेटिकली व्हेन यू आर स्टडिंग। ठीक है, तो इनोवेटिव टेक्निक्स करो अच्छे से, राइट? समझ गए? देन going ahead, what is next now? I'm going to sound a little spiritual now. Do your job, right? कर्म कर फल की इच्छा मत कर टाइप्स मालूम है ना, गीता में लिखा है ना आपने, क्या उसका मतलब? इज दैट इम्पॉर्टेंट? यस, क्योंकि मेरे हाथ में सिर्फ डूइंग माई जॉब इज दे। एक बार वो पेपर मेरे हाथ से गया, उसके बारे में सोच सोच के अगला पेपर तो ख़राब करना ही है, प्रॉब्लम भी करना है खुद के लिए, मेक्स नो सेंस। रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, रिजल्ट अपने इंस्टीट्यूट का, मेरे हिसाब से तो इंस्टीट्यूट के हाथ में भी नहीं है। ठीक है, इट इज़ सो वेरी अनप्रिडिक्टेबल। उस चक्कर में हम लोग क्यों अपना ख़राब करें दिमाग? ठीक है, ऐसा रिजल्ट आया, इतना कम आया, उसका आएगा क्या मेरा रिजल्ट? अरे मैं फेल हो गया तो मैं पास हो गया तो मेरिट में आ गया, तो मेरे हाथ में नहीं है। माई जॉब इज़ जितना हो सके अच्छे से पढ़ाई करो, पूरा पढ़ाई करो, सो दैट ऑब्वियसली रिजल्ट्स विल बी गुड। ठीक है, सो आई कैन नॉट डू रिजल्ट ओरिएंटेड, आई हैव टू डू जॉब ओरिएंटेड। आई हैव टू डू माई जॉब इन द सेंस स्टडी प्रॉपरली, बाकी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, राइट? ऐसा तो नहीं है ना जब 5% रिजल्ट आता 95% बच्चों ने मेहनत नहीं की थी, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। समवेयर और दी अदर वो रिजल्ट्स के चक्कर में टेंशन में जाकर दे आर मेकिंग सिली मिस्टेक्स, राइट? डोंट इवन थिंक अबाउट इट। एंड आई एम टेलिंग यू, जो सबसे अनएक्सपेक्टेड था ना पास होने के लिए, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे, बदमाश बच्चे, कोने में बैठ कर इतना टाइम पास करने वाले बच्चे, लेकिन पास हुए बिकॉज जब टाइम आया पढ़ने का उन्होंने पढ़ाई की है। यू गॉट माई पॉइंट? सो एंड येस, डोंट बॉदर अबाउट योर रिजल्ट्स, वो जो होगा वो होगा, राइट? के इज़ अ वेरी टिपिकल पॉइंट, नॉलेज ओरिएंटेड अप्रोच। सिर्फ सीखना नहीं बाबा, पास होना है, 40-50 मिला के चलो सीए बन गए, ऐसा सीए बनने में क्या मज़ा है, राइट? ऐसा सीए बनो कि पीपल लुक अप टू यू, अरे हाँ बाबा कुछ इसके जैसे बनना है, राइट? तो नॉलेज ओरिएंटेड मतलब सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना नहीं है, यू हैव टू स्टडी इन अ वे दैट यू विल बी एबल टू फेस एवरीथिंग इन लाइफ टुमारो, राइट और नो? ऐसे भी सी एस रहते जो क्लियर तो हो जाते कभी कभी, लेकिन उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए दे हैव टू रिफर टू देयर बुक अगेन। रिफ़र करना पड़ता है, एवरीवन हैज़ टू रिफ़र, बट छोटी छोटी चीज़ों के लिए रिफ़र करना मतलब तूने पढ़ाई ठीक से नहीं की है, राइट? क्लाइंट सामने आता है, हाँ आई विल गेट बैक टू, आई विल गेट बैक टू ऑन व्हाट, समथिंग वेरी स्टूपिड विच तुमने आईपीसीसी में पढ़ा था, राइट? ऐसा होता है, लेट मी टेल यू, ऐसा होता है। अकाउंटिंग एंट्रीज में कभी कभी अटक जाते हैं, अरे क्या करने का, बिकॉज एंट्रीज रटे थे ना, लर्न किए थे एंट्रीज, थोड़ा ट्रांजैक्शन इधर उधर तो क्या, मैंने थोड़ी सीखा था। अरे तुमको एंट्रीज नहीं सीखना, तुमको डबल एंट्री सीखना था। यू गॉट माई पॉइंट? कुछ भी एंट्री आए तो आई शुड बी एबल टू डू इट, दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर, आई एम अ सीए। तो वो हिसाब से यू हैव टू स्टडी, राइट? 3 इडियट्स का डायलॉग याद है, नॉलेज ओरिएंटेड वाला? क्या है डायलॉग? मूवीज तो देखते ही रहेंगे। कामयाब होने के लिए पढ़ो, राइट ना? ऐसा था, मत पढ़ो, काबिल बनो, करेक्ट। सो व्हाट वाज दैट? काबिल बनो, कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी। इट वॉज अ वेरी अमेजिंग डायलॉग, यू नो, इट वन सिंगल सेंटेंस बट सेड इट ऑल, करेक्ट? सो वैसा पढ़ो, यू हैव टू बी सक्सेसफुल, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, ठीक है? नेक्स्ट वन, लोप साइडेड स्टडी। ये लोप साइडेड स्टडी और नहीं बोला है, नो, दिस मीन्स नो। वाई नो? लोप साइडेड का मतलब कुछ ऐसा है, ठीक है, तुम एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को ध्यान दे रहे हो, या तुम एक प्रैक्टिकल को ध्यान देते हो, थ्योरी को इग्नोर करते हो, या वाइस वर्सा, यू आर डूइंग समथिंग लाइक दैट। अपना सीए का जो पैटर्न है ना, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो। लिटरली मैं बोल रही हूँ, लास्ट अटेम्प्ट में, ओके, आई हैड दिस वन स्टूडेंट, रियली ब्राइट स्टूडेंट, फाइनल का बच्चा था, एक ही ग्रुप है उसका, एक ग्रुप पहले ही हो गया था, एक ग्रुप दिया उसने, एंड आया वो, एंड ही इज़ लाइक, मैम आई गॉट 58,
59 and I got 57 in 3 subjects, ठीक है, and I got 39 in my 4th subject. क्या करने का? इमेजिन कितना बुरा लगता है. तुम्हारा एग्जेम्पशन तो गया तीनों का, और 1 मार्क से तुम्हारा अटेम्प्ट गया. वाई? बिकॉज वो थ्योरी का पेपर था, उसने उसको इग्नोर किया था. थ्योरी है बॉस, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ तो लिख लेंगे, लेकिन वो 1 मार्क का, यू नो, आई टेल यू, यू विल रियलाइज द इम्पोर्टेंस. जब वो 199 आता ना फाइनल में, सबसे बुरा फीलिंग होता है वो, ठीक है. वो 39 आया और उधर 59 आया ना, आस्क मी, आई हैव सीन स्टूडेंट्स रोते हैं बच्चे, लेकिन इतना बुरा लगता है. वो 1 मार्क के लिए थोड़ा सा और मेहनत कर लेता तो यार क्या जाता था मेरा, 6 महीने वेस्ट. 1 मार्क इधर 6 महीने गॉन. अपना सीए का पॉइंट ही ऐसा है, ठीक है. जैसे तैसे आई पास इन ऑल सब्जेक्ट्स. कहाँ पे प्रॉब्लम? एग्रीगेट में प्रॉब्लम. सो यू कांट अफोर्ड इट, यू हैव टू नो एवरीथिंग. ओके, एवरीथिंग इन द सेंस, मैं ये नहीं बोलती एवरी वन हैज़ देयर स्ट्रेंथ्स. हाँ, आई एम गुड एट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, आई नो इट. तो कंसिडरिंग दैट आई विल बी बेटर इन दैट, बट आई शुड बी गुड इन दी अदर्स. आई कांट बी वर्स. ओके, गुड, बेटर, बेस्ट, ये 3 चीज़ें. यू डोंट हैव एनी 4th ऑप्शन. ओके, गुड, some subjects are better and some subjects are the best, but good से एवरेज है, बिलो एवरेज है, वो ऑप्शन नहीं है अपने पास, ठीक है. अपना इंस्टीट्यूट का करिकुलम अलाउ ही नहीं करता है. क्या वो बंदे का 3 सब्जेक्ट में तो अच्छा ही था, 39 मतलब बुरा तो नहीं रहेगा, वो 1 मार्क से गया, क्या फ़ायदा हुआ? 4 सब्जेक्ट देने पड़े ना उसको. आई टोल्ड हिम, दे तू सब रिवैल के लिए. दिया भी उसने 4 पेपर्स, बट कुछ होता है क्या? बहुत कम लोगों, यू नो, दे आर लाइक लकी जो होता है रिवैल में. तो लोप साइडेड स्टडी बिल्कुल नहीं करने का. बैलेंस इट आउट, थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो, सारे सब्जेक्ट्स हो, बैलेंस इट आउट. ओके, यस और नो? ज़्यादा हो रहा है क्या फंडा? चल रहा है ना ठीक से? चलो आगे. व्हाट इज एम? मोटिवेशन लेक्चर. क्या है ये मोटिवेशन? तो कुछ है ही नहीं. हर पॉइंट में कहीं ना कहीं मोटिवेशन है, इफ़ यू ऑब्जर्व, ठीक है. व्हेन वी से मोटिवेशन, इट इज़ अ मोटिव दैट आई हैव, समथिंग विच इज़ पुशिंग मी, ठीक है. किसी के लिए दैट पुशिंग मस्ट बी आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल. किसी के लिए मेरे को मेरे मॉम डैड को प्राउड करना है. किसी के लिए आई एम नॉट फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड, तो मे बी आई वॉन्ट टू अर्न मनी. दैट इज़ माई मोटिवेशन. हर एक का अपना अपना, बिकॉज आई डोंट नो क्या बैकग्राउंड से कौन आया है. बट एक बात कन्फर्म है, सब जब यहाँ पे आते हैं सीए में मेहनत कर रहे हैं, मतलब कोई ना कोई चीज़ है जो मुझे यहाँ पुश कर रही है. करेक्ट. सो वही मोटिवेशन को तुमको पकड़ के रखना है, ठीक है. सो इफ़ आई थिंक कि नहीं बाबा, मेरे को मेरे पेरेंट्स को प्राउड करना है, ये मेरा मोटिवेशन है, राइट. हर टाइम जब आई एम बिकमिंग लेजी, मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है, आई जस्ट इमेजिन माई पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ मी. उनको प्राउड करना है. सी दैट, यू नो, दैट हैप्पी एक्सप्रेशन ऑन देयर फेस. यू विल स्टार्ट मूविंग, राइट. अगर यू थिंकिंग अरे मेरे को जॉब करना है, आई वांट टू बी लाइक वन ऑफ द बड़े कंपनीज का सीईओ, सी योर सेल्फ देयर, राइट. दैट विल मोटिवेट यू. हर चीज़ में हर बंदे को कुछ ना कुछ तो मोटिवेट करता है. कोई चीज़ों में तो नेगेटिविटी भी मोटिवेट करता है. उन्होंने बोला था बहुत डिफिकल्ट है, तेरे से नहीं होगा रे बाबा, हो गया. आई गॉट मोटिवेटेड देयर. अभी इसको करके बताता हूँ. नेगेटिव मोटिवेशन भी काम में आता है. एनी थिंग कैन बी मोटिवेटिंग. दैट इज़ फॉर यू टू डिसाइड. एंड लेट मी टेल यू, कोई तुमको कितना भी पुश करे, कुछ नहीं होने वाला जब तक अंदर से इट डजंट कम. ओके, दैट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन. क्लियर? सो दिस पॉइंट इज समथिंग दैट यू हैव टू पुश योर सेल्फ. यहाँ पे एक छोटा सा कोट है, इफ यू सी, ग्रेट थिंग्स कम when you move out of your comfort zone. My comfort zone is like, you know, I want to sleep आराम से, I want to enjoy myself. College life enjoy करना है, correct? College life enjoy करना है. तुम CA में कभी नहीं आते थे. तुमको पता है जब तुम यहाँ पे आए कि तुम्हारा कॉलेज लाइफ तो गया पूरा, कुछ नहीं मिलने वाला कॉलेज लाइफ. करेक्ट है या नहीं? मिलता है क्या कुछ कॉलेज लाइफ? कहाँ? लोग बोलते हैं FI BCom इज़ टाइम पास ईयर, 11th इज़ टाइम पास ईयर. हम लोग 11th से ही पढ़ाई शुरू कर देते CPT का. करेक्ट है या नहीं? कहाँ पे टाइम पास ईयर, राइट. वी हैव कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन्स एंड नाउ वी हैव टू स्टे देयर. ठीक है. सुबह उठना सबको नहीं जमता है, लेकिन जब सुबह 6:30 का क्लास होता है ना CA फाइनल में, आता है बच्चा कहाँ से, सुबह रात को 12, 1, 2 बजे तक काम करके ऑफिस में. आई सीन 6:30 को बच्चे आते. कहने का मतलब दे हैव कम आउट ऑफ इट. कुछ तो है ना जो उनको पुश कर रहा है, राइट. कुछ तो मतलब कोई नहीं, घर वाले नहीं हमेशा पुश करते. यू आर कमिंग, क्योंकि घर वाले पुश करके इधर भेज देंगे, इधर बैठ के सो जाएंगे, क्या फ़ायदा. यू हैव टू बी लाइक दैट. ओके. एंड हमेशा याद रखो, यू आर डूइंग दिस विद सम मोटिव इन योर माइंड. दैट कुड बी एनीथिंग आई टोल्ड यू, राइट. सो बी मोटिवेटेड एंड कंटिन्यू बीइंग मोटिवेटेड टिल द एंड, राइट. N stands for negativity. Shun it away. Shun it away matlab what? Throw it away. Just get rid of that negativity. When I say negativity, I mean negative people.
I mean negative places, I mean negative things, negative thoughts, every single thing that is negative. अब ये सब जो मैंने बोला कभी ना कभी तुम सब ने फेस किया रहेगा. नेगेटिव थॉट्स तो अपने दिमाग में आते, आई नो दैट, सबके दिमाग में आते, उसमें क्या बड़ी बात है, राइट. नेगेटिव थिंग्स, क्या नेगेटिव थिंग्स? मोबाइल इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग. वो पॉजिटिव तब था जब मॉम डैड के लिए सिर्फ कांटेक्ट करने के लिए था वो, राइट ना. बस आई एम हियर, आई एम फाइन, आई एम डूइंग गुड, वहाँ तक ठीक था वो, इट वॉज पॉजिटिव. बट जहाँ पे उसमें व्हाट्सएप डाल दिया, FB डाल दिया, राइट और नो, क्या हो गया वो? नेगेटिव. टाइम पास, डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शन, थिंग, मतलब गेट लॉस्ट. आई डोंट वांट टू बी नेगेटिव हियर. नेगेटिव पीपल, पता है वो बंदा आने वाला है, बहुत किटकिट करने वाला है वो, ही इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल नेगेटिव थिंग्स. आई डोंट वांट टू गेट इन्फ्लुएंस बाय दैट. वो चीज़ अपने दिमाग में डाल दो. एंड अगर कोई फ्रेंड भी है ना अपना जो नेगेटिव बात करता है, उसको भी अवॉइड करो. कुछ नहीं होता है, फ्रेंडशिप अपने जगह पे, अपने पॉजिटिविटी अपनी जगह पे. यू हैव टू बी हियर, बिकॉज यहाँ पे इफ़ आई गो रॉन्ग, मेरा फर्स्ट पॉइंट भी मार खाता है. कौन सा? एटीट्यूड वाला, ठीक है. सो नेगेटिविटी कोई भी हिसाब से, आई डोंट वांट इट कमिंग क्लोज टू मी. मोबाइल एडिक्शन है किसको? मोबाइल में टाइम पास, सोशल मीडिया है ना एडिक्शन. सी, अभी बीच में पागल बच्चे क्या क्या करते, वो किसको पकड़ते बैठे थे? पोकेमॉन था ना, कुछ स्टुपिडिटी. उसको कैसे एडिक्ट हो सकते हैं? आई मीन व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू? किधर भी भाग भाग के कुछ भी कर रहे हैं. इमेजिन, आई मीन हाइट्स, और अपने CA के भी बच्चे करने के. एक फाइनल का स्टूडेंट, मैम मैंने इतने पकड़ा है, फिर लाइक गिविंग वन टाइप स्लैप. मैंने उसको बोला भी, आई वांट टू गिव यू वन स्लैप नाउ. क्या कर रहा है तू? ठीक है, इस टाइप का कुछ भी डिस्ट्रैक्शन अपने आसपास नहीं आना चाहिए. आई एम नहीं तो इधर उधर मेरा गोल से आई एम गोइंग अवे, नहीं. बी फोकस्ड, करेक्ट. सो फॉर दैट आई डोंट वांट एनी नेगेटिविटी. कौन पॉजिटिविटी देता है अपने को? Who gives us? Parents, right? कहीं ना कहीं पेरेंट्स, फैमिली, गुड फ्रेंड्स, fair enough, teachers, they give you that positivity. Take it from them. But let me tell you, positivity लेना इतना easy नहीं जितना negativity. It is more contagious, negativity. तो तुमको उसका ध्यान रखना है. Don't let it hit you. और जहाँ पे लगने लगा हिट हो रहा है, भाग जाओ वहाँ से. Concentrate somewhere else. ठीक है? Got my point? एंड दिस इज कंटिन्यूस. हाँ, कंटिन्यूस. अरे आज के दिन चलता है, कम ऑन, नहीं, नो टाइम पास, नेगेटिविटी कुछ भी नहीं. चलो, व्हाट इज ओ गोइंग टू बी? कोई गैस? लीविंग फॉर ऑप्शन अपना फेवरेट काम है, राइट ना. अमालगमेशन, गंदा चैप्टर, इतना बड़ा चैप्टर, 16 मार्क का ही तो आएगा, उसके लिए कितनी मेहनत करे. ऑप्शन है ना अपने पेपर में, सॉल्व एनी 5 आउट ऑफ 6, बराबर है ना. उसमें अमालगमेशन छोड़ दो, बराबर है. आया दिमाग में कभी? वैसे नेगेटिव था ये, दिस वॉज अ नेगेटिव थॉट. बिल्कुल नहीं, बिकॉज इफ अगेन आई एम लिविंग एट ऑप्शन, कल जाके अगेन वेरी नाइस कोट, एवरीथिंग इज हार्ड बिफोर इट इज ईजी. मीन्स वॉट? एवरी डैम थिंग यू डू इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट अनलेस यू डू इट. फिर वो ईजी बन जाएगा. अभी फाइनल में मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ, एक चैप्टर है CFS करके, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड FS. तो उसमें इट्स वन ऑफ द वेरी डिफ़िकल्ट चैप्टर्स, ठीक है. और बच्चा बोलता है, अरे 50 सम्स करके एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. उससे अच्छा छोड़ दो वो चैप्टर, 50 सम्स कौन करेगा. सुनो, साइकोलॉजी देखो. और बाकी के चैप्टर्स अच्छे से, एकदम अच्छे से करेंगे हम लोग, ठीक है. यू आर टॉकिंग ऑफ फाइनल एंड यू आर टॉकिंग ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर. फर्स्ट पेपर, कभी भी इंस्टीट्यूट का फर्स्ट पेपर तुम्हारे लिए एक ब्लो ही रहता है. उधर ही उनको, आधे लोगों को उधर ही गिराने का है, आउट. बिकॉज फर्स्ट पेपर देने के बाद, यू वोंट बिलीव दिस, तुम एग्जाम हॉल में जाकर देखो, स्पेशली इन फाइनल आई एम सेइंग, सेकेंड पेपर को 20% कम नहीं हुआ अटेंडेंस, तो मेरा नाम बदल देना. थर्ड पेपर में 40%, 50% डाउन. पता है उनको कुछ नहीं होने वाला है. वाई डिड यू मेक अ मेस ऑफ थिंग्स बाय योर सेल्फ? तुम्हारे पास ऑप्शन था ना पढ़ने का, 3 महीने थे ना तुम्हारे पास, 4 महीने फाइनल में, तो क्या फ़र्क पड़ता था? 50 सम्स मतलब कितना टाइम? तुम 4 सम्स भी रोज़ करोगे तो कितने दिन में हो जाता था वो? 12-13 दिन में ख़त्म. एंड बिलीव मी, लास्ट 2 अटेम्प्ट से CFS का क्वेश्चन हैज़ बीन द सिंपलेस्ट दैट यू कैन इमेजिन. और बाकी चैप्टर्स में स्टूडेंट्स की वाट लगा रहे, लिटरली आई एम सेइंग दैट. इतने गंदे क्वेश्चंस पूछे, और जो CFS करके नहीं गया बच्चा, वो उसमें तो गया ही, और बाकी चैप्टर्स में भी प्रॉब्लम आ गया. You got it? Leaving for option means you are making an optional paper compulsory, because वो question तुमको नहीं जमने वाला है, तो बाकी का तुमको करना ही पड़ेगा. And if you can't do it, you're gone. Got my point? So you have to see to it that don't leave anything for option.
Our institute has one, our institute, this is not my wording, this is our institute. Either you know something of everything, okay, or you know everything of something. Now what they are saying is a little misguiding here. But then what they are saying, trying to say is that either you know everything थोड़ा थोड़ा, या तुमको कुछ चीज़ मालूम है उसको तुमको 100%, 100% कोई चीज़ मालूम होना बहुत डिफिकल्ट है अपने लिए, ठीक है. अमालगमेशन में तुम कितने भी एडजस्टमेंट्स करके जाओ, यू विल गेट समथिंग न्यू इन द एग्जाम. हाउ कैन आई डू 100%? तो बेटर क्या है, नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग. गॉट इट? समथिंग डजंट मीन सब इधर उधर इतना सा इतना सा इतना सा. यू शुड नो एवरीथिंग. कभी कभी एक दो टाइप के सम्स रहते, नहीं आता बाबा, वो अपना बैड लगे फिर वही आ गया तो एग्जाम में, दैट इज़ ओके. बट ऑप्शन में लीव करना स्टुपिडिटी, यू कांट अफोर्ड इट. ओके, समझा? ये सब पॉइंट सुनना है, समझना, और मेन चीज़ क्या, इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट करना है. ठीक है, चलो, ओ इज डन. नाउ व्हाट? पी. देखकर कुछ याद आया? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. हाँ, मेक्स अ मैन परफेक्ट. फिर लगता है अरे मैन परफेक्ट, विमेन का क्या, वो तो बॉर्न परफेक्ट ही रहते, ठीक है. सो दे आर जस्ट टू गुड. सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. कीप प्रैक्टिसिंग, यू डोंट हैव अ चॉइस. ठीक है, कितना भी कुछ भी हो. एंड व्हेन आई से प्रैक्टिस आई मीन लेकर पेन, कैल्सी, बुक, सम सॉल्व करो करो करो, सॉल्व करो. एकदम फेयर टाइप में मत करो, बट सॉल्व करो उसको. ठीक है, लाइक अभी कॉस्टिंग फॉर एग्जाम्पल, मटेरियल का चैप्टर लिया, क्या रहता है उसमें, सिर्फ मटेरियल का इतना इतना, ये कॉस्ट लेना है इतना नहीं. यू टेक इन रफ, बट तुमको सॉल्व करना है. ठीक है, प्रैक्टिसिंग इज एक्सट्रीमली नेसेसरी इन सीए. क्लियर? व्हाट इज क्यू? क्वेश्चनिंग माइंड. ये क्वेश्चनिंग माइंड क्या होता है, राइट? अपने आप यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस, राइट? अरे ये समय मैंने ऐसा किया था, ये इसी टाइप का समय, इसमें ऐसा क्यों किया मैंने, कुछ तो डिफरेंट था, मतलब वर्डिंग्स में कुछ खेल है क्या, समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग हियर, राइट? समथिंग और द अदर यू विल ऑलवेज. एंड क्वेश्चनिंग माइंड डजंट मीन ऑल द टाइम बीइंग सराउंडेड विथ क्वेश्चंस ओनली. क्वेश्चंस विच आर रीजनेबल एंड प्रॉपर. यू नो, एक स्टूडेंट था मेरा, वो सिर्फ क्वेश्चंस ही पूछता था, मतलब उसको एक पॉइंट बोलो, उसके पास 4 क्वेश्चंस होते हैं. आई एम लाइक अरे इतना भी नहीं बोला. देखो क्वेश्चनिंग में मतलब ये नहीं कि पूरा टाइम सिर्फ बिकम लाइक दैट क्वेश्चन मार्क, ओके, नो. बट जहाँ पे रीजनेबल डाउट है वहाँ पे पूछना तुम्हारा काम है. एंड सी टू इट कि तुमको उसका आंसर्स मिले. गॉट इट? दैट विल हेल्प यू टू व्हाट आई विल से डेवलप योर लर्निंग एबिलिटी ओवर टाइम. ठीक है, सो हैव दैट क्वेश्चनिंग माइंड. सोचो, समझो, एंड फिर अपना काम करो. ठीक है, समझा? यहाँ तक कुछ डाउट्स है? सब समझ रहे हैं? कुछ पॉइंट में डिसअग्री करते हो? नहीं, अग्री करते हो. वैसे भी शाम के टाइम में सब अग्री करते, वैसे भी थक गए हुए हैं, राइट? ओके, कुछ क्वेश्चंस, कुछ भी तुमको? नहीं, नहीं, ठीक है. नेक्स्ट कम्स आर. रिलैक्स. नाउ व्हेन आई से रिलैक्स डजंट मीन कि बस हो जाओ आराम से. ठीक है, इट मीन्स ज़्यादा भी स्ट्रेस मत लो. आई मीन कम ऑन, सीए इज़ नॉट योर लाइफ, इट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. पार्ट मतलब लिटरली अ पार्ट. ओके, डोंट टेक इट सो सीरियसली कि मेरा लाइफ इज़ लाइक सीए. कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. सीए बन भी जाएंगे तो भी आई एम गोइंग टू बी अ हैप्पी लाइफ, आई एम गोइंग टू लीड अ हैप्पी लाइफ. नहीं भी बने तो भी आई एम गोइंग टू लीड अ हैप्पी लाइफ. कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इट शुड नॉट अफेक्ट माई हैप्पीनेस. ठीक है, बिकॉज ऐसा होता है ना, जब 100 में मैं बोल रही हूँ अगर 10% भी रिजल्ट पकड़ते तो 90% बच्चे ऑब्वियसली दे गो अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस. दैट शुड नॉट बी द केस. रिलैक्स. होना है तब होगा. मैंने जैसे बोला, डू योर जॉब, मैं अपना काम पूरा करूँगा. फिर वो नहीं आया, मेरे हाथ में नहीं है. बट हाँ, तुम अगर वहाँ पे रिलैक्स हो गए काम करने के टाइम पे, तो फिर एक्सपेक्ट करो तुम्हारा बुरा रिजल्ट आएगा. Okay, so relax here means that. When I say relax, I also mean that it should be proper, healthy, adequate sleep also. मैंने देखा है बच्चों को बैठे बैठे 3-3 घंटे 4-4 घंटे ही सोते हैं, फिर पढ़ते रहते पूरा टाइम. कम ऑन, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? इतना करने की क्या ज़रूरत है? आई मीन 6 to 7 आवर्स तो कोई तुमने स्कूल में ही पढ़ा रहेगा ना. फॉर अ चाइल्ड 8 आवर्स स्लीप इज़ नेसेसरी, पढ़ा था, याद है? एंड फॉर एन अडल्ट 6 आवर्स. अभी 6 आवर्स का फंडा चेंज हो गया, लेट मी टेल यू. जब से हम लोग कंप्यूटर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स में आ गए, नाउ इट्स बिकम 7 आवर्स इफ यू डोंट नो. रीज़न इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज पहले लोग इतना नहीं, यू नो, दे इज नॉट ट्रबल द आइज सो मच जितना अभी हम करते हैं. ठीक है, सो 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ नेसेसरी इवन इन योर एग्जाम डेज. गेट इट करेक्ट. ऐसा कुछ नहीं कि लास्ट मोमेंट पे तुम्हारा पढ़ाई होने वाला है कि मैं कैसे सोऊं, मेरे को नींद नहीं आती. जो पढ़ाई करता है बंदा, उसको नींद आती है, क्योंकि उसका मतलब वो थका हुआ है, राइट? अगर तुमको नींद नहीं आती मतलब तुम कुछ नहीं कर रहे हो. इट्स सिंपल. ठीक है, तो रिलैक्स मीन्स दैट वेज. फालतू का स्ट्रेस लेने का नहीं.
Stress will show very immediately on your face and in your marks and in your performance. Let that not happen. ठीक है? So relax आराम से. और R का मैंने एक और पॉइंट लिखा हुआ है, रिवॉर्ड. रिवॉर्ड योर सेल्फ. छोटे छोटे अचीवमेंट्स को रिवॉर्ड योर सेल्फ. ओके, खुद से इतने भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करो कि छोटे छोटे जो अचीवमेंट्स का खुशी ना तुम्हारा कम हो जाए. ठीक है? लाइक यू नो, कभी ऐसा होता है कि मेरा एक चैप्टर है, से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉर एग्जाम्पल. बच्चों को नहीं अच्छा लगता स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बहुत स्टूडेंट्स दे डोंट लाइक इट, बट फिर अभी उनको फॉर्मूलाज आने लगे हैं. दे लाइक यू नो, अभी मेरे को फॉर्मूलाज आ रहा है, बी हैप्पी अबाउट इट. मेरे को अरे मेरा कॉस्टिंग है, इतना बड़ा कॉस्टिंग है, ठीक है ना, कुछ तो आ रहा है ना, यू आर गोइंग समवेयर. तो छोटे छोटे चीज़ों में रिवॉर्ड योर सेल्फ. डजंट मीन हर घंटे में खुद को रिवॉर्ड करो इन फॉर्म ऑफ ईटिंग एंड गोइंग आउट एंड वॉचिंग मूवीज, बट येस, वट एवर आई हैव अचीव्ड, किसी के साथ कॉम्पिटिशन मत करो अपने अलावा. बेटर, आई एम बिकम बेटर देन येस्टरडे, दैट्स ऑल आई एम लुकिंग फॉर. ओके, ये चैप्टर में आई वॉज 0, अभी एटलीस्ट आई एम 30-40 एंड आई वॉन्ट टू रीच 70-80. कुछ तो कर रहे हैं. छोटे छोटे चीज़ों को रिवॉर्ड करो. पूरे वीक पढ़ाई किया तो फिर एंड में संडे को अपने आप को 2 घंटा वेरी स्पेसिफिक आई एम सेइंग, उससे ज़्यादा रिवॉर्डिंग नहीं नेसेसरी. तो कीप रिवॉर्डिंग योर सेल्फ एंड यू विल ऑल्सो फील, हाँ कुछ अचीवमेंट का जो सेंस आता है ना, तुमको और पुश करता है कुछ और करने के लिए. बराबर है कि नहीं? लेट दैट अचीवमेंट सेंस कम इन यू. राइट? फाइन. बोलो. पेरेंट्स कंपेयर करते हैं बिकॉज पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा ना इसके जैसा उसके जैसा बने. राइट? तो पेरेंट्स को यही समझाने का कि आई एम अ यूनिक पर्सन. और देखो, अगर आई एम नॉट सो गुड इन स्टडीज़, आई एम बेटर इन समथिंग एल्स. बराबर है कि नहीं? उनको कंपैरिजन में उनको ही अपने इसमें ही गिव देम देयर ओन मेडिसिन देयर. कैसे? आई एम बेटर इन दिस ना, उसके साथ कंपेयर करो ना फिर. राइट? ऐसा बोल देने का पप्पा मम्मी को. आई मीन आई नो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. क्यों मम्मी पापा तक जाने का, हम खुद भी करते हैं. राइट? अगर मैं मेरे फ्रेंड के साथ पढ़ाई करूँ तो आई थिंक ना, अरे उसका आधे घंटे में सम हो गया, मेरा 40 मिनट्स लगा. वो होता है, बट लेट दैट नॉट हैपन. मेरे को 40 मिनट्स लगा ना, अगले टाइम मुझे 35 लगना चाहिए. थर्ड टाइम में 30 में आई विल ट्राई टू रीच ना. बस खुद के साथ करो. और मॉम डैड को क्या है, उनको करने दो कंपेयर, उनका काम ही है वो. इट्स ओके. गॉट माई पॉइंट? कुछ नहीं अपना, लेकिन काम करने का. हाँ, तुम अगर ऐसा बोलो मुझे कि मैंने पूरी मेहनत की है एंड उसके बाद डिडंट गेट द रिजल्ट और मॉम डैड ने मेरे को चिल्लाया, ऐसा होगा? पूरी मेहनत करने के बाद विल दे एवर शाउट एट यू? नहीं. इनफैक्ट वो तुम्हारे, दे विल ट्राई टू सिंपथाइज, अप्रिशिएट, दे विल ट्राई टू मेक यू काम डाउन. नहीं, तूने किया मेहनत, बट उसके लिए उनको वो दिखना चाहिए. वो पापा मम्मी कभी भी रिजल्ट्स में नहीं कंपेयर करते, वो मेहनत में करते. अगर तुमने ऑब्जर्व किया है कि देख वो कितना पढ़ रहा है, तू क्या कर रहा है, दैट वेज. वो CA बन गया, वो बन गया, वो ठीक है. तू मेहनत कर रहा है, तू नहीं बना, दे विल फील बैड एंड दे विल नॉट कंपेयर. गॉट माई पॉइंट? तो वैसा रहता है वो चीज़. और कुछ? Then S stands for a very important thing. Set your timetable. Yes, timetable setting is what I used to do as a weekly exercise. ठीक है? Because क्या होता था, I remember मैं timetable set करती. ठीक है? I would say Monday से शुरू होता था पढ़ाई. Monday, Tuesday, Wednesday टाइम टेबल के हिसाब से अमेजिंग चल रहा है. फिर थर्सडे फ्राइडे थोड़ा सा डाउन हो गया. फिर फ्राइडे को लगता अरे यार वो टाइम टेबल नहीं हो रहा है, नहीं वर्क कर रहा है. फिर क्या करने का, फ्राइडे को नया टाइम टेबल. ठीक है? और फिर अभी 2 दिन है ना, थोड़ा सा पहले का कुछ कर लेने का और नया टाइम टेबल आई विल इम्प्लीमेंट फ्रॉम मंडे अगेन. आई मीन ये एक इट्स अ विशियस सर्कल, यू नो. आई कुडंट गेट आउट ऑफ इट एवर. So it was like my, I would say, I'd become a pro in setting timetables, but of course it's not a good thing. टाइम टेबल सेट करो, उसको अचीव करने को ऑब्वियसली ट्राई करो. कभी भी टाइम टेबल सेट करने के टाइम पे डोंट गो एकदम बड़े बड़े इसके साथ. गो विथ वीकली टारगेट्स. ये वीक में ये सब्जेक्ट का इतना, ये सब्जेक्ट का इतना, हर सब्जेक्ट का मुझे कुछ ना कुछ करना है हर वीक में. ओके? अगर तुमको ये आदत है कि लाइक पूरा दिन एक सब्जेक्ट करने का, तो सबसे पहले स्टूपिड आदत निकाल दो. ओके? फुल डे I've seen students, I don't get the feel of the subject जब तक मैं 4 घंटे पढ़ता. मुझे लगता है नहीं मैं उसके अंदर गया. I mean, देखो अंदर क्यों जाना है उसके? What is wrong with you? कोई ज़रूरत नहीं है. 2-3 घंटा करो, उसके बाद जो concentration वैसे भी कम हो जाता है वो सब्जेक्ट में. Change your subject. Okay? When I was studying, okay, now my parents are doctors. उनको कुछ भी नहीं पता है CA के बारे में. ठीक है? तो P2 के टाइम पे हमको 3 महीने का छुट्टी मिला था ऑफिस से. तो I was studying normal. ठीक है? तो ऐसे मेरे फ्रेंड्स ने कुछ ऐसा किया था, फुल डे एक ही सब्जेक्ट करके बैठने का ना. वो एज ही ऐसा होता है, यू गेट वेरी इन्फ्लुएंस बाय एवरीवन. अरे वो पूरा दिन एक सब्जेक्ट कर रहा है. आई ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग दैट. ओके? एंड बहुत ट्रायल एंड एरर करके आई हैव कम टू दीज कंक्लूजन्स. हाँ, तो
फिर पढ़ाई किया पूरा दिन, ओके, तो एक कुछ तो लेके बैठ के पूरा दिन आई स्टूड ओनली दैट, एंड फिर 2-3-4 घंटे के बाद इट जस्ट ड्रैग्ड लाइक एनीथिंग, कुछ आउटपुट नहीं, और दिन भर सिर्फ लेकर बैठा, एंड में इतना फ्रस्ट्रेशन, पूरा दिन चला गया और इतना सही किया. तो माई डैड सॉ दिस, 2-3 दिन तक आई वॉज डूइंग लाइक दिस. तो पापा ने मुझे बोला व्हाट आर यू डूइंग नेहा, आई मीन क्या क्या कर रही हो, इंस्टेड ऑफ दिस चेंज योर सब्जेक्ट्स, एंड चेंजिंग योर सब्जेक्ट्स इज अ रिलैक्सेशन, ही टोल्ड मी. 2 घंटे हुए, चेंज योर सब्जेक्ट, ओके, 2 घंटे चेंज. आई सेड पापा ऐसा तो कोई करता ही नहीं है, ऐसे कैसे करूँ, एंड कंसिडरिंग ही इज़ अ डॉक्टर एंड आई एम अ CA, आई एम बिकमिंग अ CA, मुझे ऐसे लगा उनको नहीं समझता रहेगा मेरा फील्ड, ठीक है. बट ही सेड नहीं, यू ट्राई दिस, एकदम कॉन्फिडेंट, ही सेड यू ट्राई दिस. बिलीव मी, मैंने जब वैसा किया, ओके, मैं 6 सब्जेक्ट्स रोज़ करने की, कोई 1.5 आवर करने की, कोई 2 आवर्स करने की, लेकिन ओवरऑल आई शुड डू ऑल 6 सब्जेक्ट्स इन अ डे, एंड एवरी टाइम आई वॉज गेटिंग बेटर आउटपुट. ठीक है, क्या रीज़न होता है, बिकॉज आफ्टर 1.5-2 आवर्स योर माइंड गेट्स डाउन इन दैट सब्जेक्ट. एफिशिएंसी कम होना इट्स साइंटिफिकली प्रूवन. उस टाइम पे क्या करने का, चेंज द सब्जेक्ट, चेंज द सब्जेक्ट. फिर से योर माइंड इज लाइक एकदम अरे चल चल कुछ नया पढ़ना है. इट अगेन बिकम्स एकदम पीक पे अलर्ट, एंड अगेन देन धीरे धीरे जाने लगता, अगेन चेंज द सब्जेक्ट, दैट वेज, ओके. बट ऐसा नहीं कि कीप चेंजिंग एंड काइंड ऑफ स्वॉपिंग द सब्जेक्ट्स विदाउट एनी आउटपुट. हर चीज़ में 2 घंटे में मुझे ये 10 सम्स करने ही है, दैट आई हैव टू सेट. तो वो हिसाब से किया, 2-3 दिन में आई गॉट यूज टू इट, एंड देन आफ्टर दैट आई लाइक दैट मेथड वेरी मच. लेकिन आई डोंट टेल स्टूडेंट्स कि ऐसा ही करो. किसको लगता है नहीं बाबा 3 या 4 सब्जेक्ट्स आई एम कंफर्टेबल, ठीक है उतना करो, बट 1 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट्स अ डे इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल. क्लियर? एटलीस्ट 4. अगर तुम दिन भर पढ़ रहे हो, अगर समय तुम्हारे क्लासेस चल रहे हैं, अभी ग्रुप 2 के क्लासेस चलेंगे तो ग्रुप 1 का पढ़ाई भी चालू करना पड़ेगा, प्लस ग्रुप 2 का भी साइड बाय साइड करना है तुमको, तो फिर इन दैट केस ग्रुप 2 का जो हो रहा है वो 2-3 घंटा रिवाइज करो, बाकी का 1 सब्जेक्ट लो, बिकॉज नाउ यू ऑलरेडी डूइंग 3 सब्जेक्ट्स. उस हिसाब से हैव टू बैलेंस इट आउट. ठीक है, समझा? तो सेट योर टाइम टेबल, वीकली टारगेट रखो, और वो डिवाइड योर सिलेबस डी वाला पॉइंट था, याद है, टाइम टेबल में उठाने का. पार्ट 1 ऑफ FM, पार्ट 3 ऑफ कॉस्टिंग, पार्ट 4 ऑफ अकाउंट्स, मेरे को ये वीक में करना है, और करना ही है, संडे तक करना ही है. गॉट इट? टारगेट करने के टाइम पे 6 दिन का टारगेट रखें, कभी भी सैटरडे तक का. 6 days में हैव टू डू दिस, क्योंकि 7th डे इज गोइंग टू बी माई रिवॉर्ड डे ऑल्सो, रिलैक्स डे ऑल्सो, हॉबी डे ऑल्सो, एंड फिलर डे ऑल्सो. फिलर डे जो भी नहीं हुआ 6 दिन में, लास्ट डे कंप्लीट करना है. गॉट माई पॉइंट? वो संडे उसके लिए रखती हूँ मैं, या फिर फ्रेंड्स के साथ जाके डिस्कस भी करना है, वो सब भी तो करना है ना. तो कंसिडरिंग दैट 6 दिन का रखने का, और फिर जो नहीं हुआ वो संडे को हाफ डे ये सब करो, और बाकी का हाफ डे टाइम पास करो. टाइम पास मतलब यू नो व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है, तो वो हिसाब से. क्लियर? सेट योर टाइम टेबल, समझा? पक्का? और जो भी टाइम टेबल बनाते अपने, वो नोट ये रहता है ना अपने घर पे हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे यू जस्ट पुट इट देयर, एंड एवरी वीक यू सी टू इट कि जो किया उसको टिक मारो, हाँ मेरा हो गया. दैट सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और खुद को इतना भी कम मत दो कि अननेसेसरी गेट ओवर कॉन्फिडेंट, इतना भी ज़्यादा मत दो कि लोअर योर मोरल कि अरे बाबा हो नहीं रहा है. एकदम हेल्दी दो जिसको यू विल अचीव एंड यू विल फील लाइक हाँ रिवॉर्डिंग, मैंने कुछ किया. ठीक है, ठीक है ना. नेक्स्ट आई हैव T, टाइम मैनेजमेंट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टाइम मैनेजमेंट? ऑब्वियसली सुना ही रहेगा अपने सीनियर्स से, पेपर आ रहा था, अरे बाबा टाइम ही नहीं मिला, कंप्लीट ही नहीं हुआ, राइट और नो? सुना है ना, क्योंकि वी कुडंट मैनेज आवर टाइम. पेपर में तो 3 hours में ही सब करना है, कितना पूरा 3-4 महीने का 9 months का मेहनत तुमको 3 घंटे में सामने खड़ा करना है उसके एग्जामिनर के. इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी. तो टाइम मैनेजमेंट डजंट कम इन दोज 3 hours, इट कम्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. जब से तुम शुरू करते हो पढ़ाई, वहाँ से और टाइम मैनेजमेंट. कहाँ पे तुमको थोड़ा सा टाइम मिल गया, लेकिन अभी अपना लेक्चर थोड़ा लेट शुरू हुआ, राइट? इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग हियर एंड देयर, तुम क्या कर सकते थे? आई टोल्ड यू ना, 5 मिनट भी मिला, 10 मिनट भी मिला, कॉस्टिंग का एक सम तो हो ही जाता था ना उसमें. इसी को बोलते टाइम मैनेजमेंट. ओके, कंसिडरिंग दैट यू शुड डू इट. लंच टाइम मिला, ½ an hour, ठीक है खा लिया, नो प्रॉब्लम. बट कभी अपने सर को लेट हो गया आने को, उसके बाद व्हाई टू वेस्ट टाइम? लो होमवर्क करो उसको. छोटी छोटी चीज़ें जब यू लर्न टू मैनेज ना, आई एम टेलिंग यू, यू विल इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स. इट कम्स विथ प्रैक्टिस, इट इज़ नॉट गोइंग टू कम ओवरनाइट. और फिर जब तुम पेपर्स लिखोगे तब अपने आप यू विल नो हाउ टू मैनेज योर टाइम. ओके, फेयर इनफ. T से मैंने एक और पॉइंट लिखा है, ट्रिपल फिल्टर. ये ट्रिपल फिल्टर वाला फंडा क्या है? नॉर्मली जब मैं बच्चों को बोलती कि तुमको 3 बार पढ़ना है हर चीज़, तो उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है 3 times पढ़े तो कैसे पढ़े? आई मीन कहाँ पे अपने पास इतना टाइम होता है? तो
आई हैव डिवाइस दिस ट्रिपल फिल्टर वाला थिंग. इसमें क्या होता है ना, फर्स्ट फिल्टर मीन्स वॉट, फर्स्ट टाइम रीडिंग यू विल रीड एवरीथिंग. ओके, वाइल रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम तुम क्या करोगे, यू विल मार्क एवरीथिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट, डिफरेंट, यू नो, एग्जाम ओरिएंटेड, मार्क करके रखो. सो दैट सेकेंड टाइम आई विल नॉट नीड टू डू एवरीथिंग, आई विल ओनली डू द मार्क्ड इंपॉर्टेंट स्टफ. समझ में आया? अब तुम कॉस्टिंग का ही सब्जेक्ट ले लो. मटीरियल में अगर मैं बोलूँ 40, मटीरियल चैप्टर में 40 सम्स है. आर ऑल द 40 सम्स न्यू कंसेप्ट्स? आर दे न्यू कंसेप्ट्स? नो ना. 40 में से आई एम श्योर 15 सम्स आर होमवर्क टाइप, सेम कंसेप्ट का प्रैक्टिस. बराबर है, मतलब मेरे पास 25 सम्स ही बचे एक्चुअल में, तो फर्स्ट टाइम मैं पूरे 40 सॉल्व करता हूँ. हाँ, आई विल डू इट, बट उसी टाइम पे मैं 25 को मार्क कर देंगे. 15 बहुत ईजी है, सेम टाइप है, मेरे को पता है. हो गया 25, फर्स्ट फिल्टर में 25 हो गए तुम्हारे. सेकेंड फिल्टर के टाइम पे व्हाट विल हैपन, वो 25 को ही आई एम गोइंग टू सी. 25 को देखने के टाइम पे आई रियलाइज इसमें से 10 तो मेरे को बहुत ईजिली आ गए बाबा, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट. कितने हो गए? 15, राइट. उसी टाइम पे आई ऑल्सो सी माई प्रैक्टिस मैन्यूल, आई विल सी माई मॉड्यूल, उसमें कुछ नया मिल गया बाबा, तो वो आई विल इनकॉर्पोरेट. 15 का समझ लो 20 हो गया वापस. और ट्रिपल फिल्टर, थर्ड रीडिंग के टाइम पे आई रियलाइज कि 20 में से अब आई ओनली नीड टू सी 10. बराबर है कि नहीं? हाँ, हर टाइम आई एम प्रिपेयरिंग, नॉट जस्ट दैट, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई नेक्स्ट रीडिंग ऑल्सो. क्योंकि एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, वन डे बिफोर द एग्जाम में सब कैसे पढ़ूँ. अरे वन डे बिफोर द एग्जाम तुमको 40 सम्स देखने ही नहीं है, तुमको सिर्फ 10 सम्स देखने जो तुमने मार्क किए ओवर द वे, और तुमको पता है 10 सम्स में सब कवर्ड है, फॉर्मूलाज कवर्ड है. बराबर है कि नहीं? तो फिर वो 40 का जब 10 हो गया मतलब 25% यू आर देयर. अब यू कैन फिनिश इट, 3 रीडिंग का. दैट्स द थिंग, ट्रिपल फिल्टर उसको बोलते हैं. ओके, सो हर टाइम व्हेन यू आर रीडिंग, इवन फॉर एग्जाम्पल थ्योरी लाइक लॉ और ऑडिट, वी रीड द फर्स्ट टाइम, पूरा रीड करो. नेक्स्ट टाइम मालूम है हमने हाईलाइट किया, यही पॉइंट्स रीड करने हैं, इसको ही अच्छे से करना है, राइट. थर्ड टाइम ओनली हैव टू रिवाइज माई पॉइंट्स बिकॉज आई नो एवरीथिंग नाउ. दैट इज द वे, इट हैज़ टू गो लाइक दैट. तुम सब कुछ सब टाइम पढ़ते रहोगे तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. क्लियर? योर फर्स्ट रीडिंग टेक्स द मैक्सिमम टाइम. सेकेंड एंड थर्ड आर ऑलमोस्ट पैरेलल. वाई? बिकॉज सेकेंड टाइम पे वॉट यूर डूइंग नाउ, सेकेंड टाइम पे विल डू PM एंड थर्ड टाइम पे विल डू थोड़े बहुत एग्जाम के क्वेश्चंस. तो इट इज अप्रॉक्स द सेम बट गुड इनफ. ठीक है? नाउ कम्स यू अंडरस्टैंडिंग योर concepts, right? I have always stressed and I will always keep stressing on concepts because I believe in this hardcore thing like concepts. There cannot be anything which is going to be done in a mechanical manner. होगा अगर वैसा mechanical तो 5% of your syllabus, 95% of any damn subject and your syllabus has to be understood conceptually. आज कल के papers उठा के देख लो तुम, institute is बिग टाइम प्रमोटिंग कंसेप्चुअल, बिकॉज उनको पता है अभी बच्चे रट रट के नहीं पास हो सकते इधर. ठीक है, हमको वैसे, तुमने कभी सोचा है रिजल्ट्स इतने बुरे क्यों आने लगे अभी? हैव यू एवर थॉट ऑफ इट? तुमने देखा नहीं लास्ट 3-4 साल से रिजल्ट्स आर नॉट वेरी गुड. डिड यू ऑब्जर्व क्या रीज़न था? बिकॉज स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर शॉर्टकट्स. उनको लगता है कि शॉर्टकट करके चल बाबा थोड़ा बहुत पढ़ के कुछ तो भी लिख के हो जाएगा. ये BCom नहीं है बॉस, जाके BCom करो, तुमको ये सब करना है तो. ये प्रोफेशनल एग्जाम है, इसमें तुमको पूरा टेस्ट करेंगे ऊपर से नीचे तक, पूरा अंदर से दे गोइंग टू टेक आउट थिंग्स फ्रॉम यू एंड सी टू इट दैट यू आर गुड. ठीक है, यू हैव एब्सोल्युटली नो चॉइस ओवर हियर, क्योंकि कंसेप्ट पता रहेगा. तुम 25 क्वेश्चन सॉल्व करो, आई एम टेलिंग यू, ये ट्राई करके देखो. तुम 25 क्वेश्चन सॉल्व करो मैकेनिकली विदाउट नोइंग द कंसेप्ट. मैं तुमको थोड़ा ट्विस्ट करके दे दूँ, तुम 26 में गड़बड़ जाओगे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड. और कंसेप्चुअली तुम 4 क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व, ओनली 4 आई एम सेइंग, तुमको 5th क्वेश्चन आराम से आएगा. यू डोंट नीड टू थिंक बियॉन्ड इट. इट टेक्स टाइम फॉर योर कंसेप्ट्स बट इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. समझा? घुमा फिरा के कितने भी क्वेश्चंस पूछा, आई नो इट ना, तुम कितना भी घुमाए, नो दिस इज ओनली द थिंग. इट कांट, बिकॉज एवरीथिंग कैन चेंज, योर क्वेश्चन, योर वे ऑफ राइटिंग, बट वॉट विल नेवर चेंज? दैट कंसेप्ट. गेट दैट क्लियर. उसके ऊपर बहुत जोर दो. ठीक है, चलो. V stands for vision. Now what is this vision we are talking about? Imagination तो सब में रहता है, करेक्ट ना? क्या imagination? अभी जैसे you're imagining some food in front of you, भूख तो लगी रहेंगी आई एम श्योर अभी, राइट और नो? या इमेजिनिंग अभी बस थक गए चलो घर जाना है, कुछ तो रहेगा.
These are all छोटे मोटे imaginations. When I talk about vision, I'm talking about something bigger. See yourself there. What you see is what you will try to seek, remember. Okay? If I can see myself becoming that CA, I can see myself, I'm going to get good marks. I can see myself, I want to get this really good job. If I can see it, I'm going to work towards it. But अगर कुछ विजन ही नहीं, मैं आज और कल के आगे सोचता ही नहीं हूँ कुछ, बस मेरे लिए आज का होमवर्क हो गया, कल का काम हो गया, आई एम डन, नहीं, कहीं ना कहीं इट विल dwindle. You have to be focused over there. And bigger picture, imagine, and you will go there. समझाना, focus should be always big. Steps are small, but focus is big. Got my point? It's very important. छोटे छोटे स्टेप्स ही रीच दे, ऐसा नहीं कि तुम उड़ के जाने वाले उधर, नो, छोटे छोटे स्टेप्स अपना अपना पेस लेकर ही जाएगा, लेकिन द फ्रंट पिक्चर शुड बी वेरी वेरी क्लियर. अभी अपना एम है CA बनना, राइट? सिर्फ CA पास होना है रखड़ रखड़ के, या अच्छा CA बनना इज़ माई एम. अच्छा CA, उसके लिए नॉलेज ओरिएंटेड, अगर उसमें आई गेट इवन गुड मार्क्स तो इवन बेटर. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर 1-2 अटैम्प्ट लगे CA में कोई बड़ी बात नहीं रहती है, लेकिन आई नो माई नॉलेज इज़ नॉट क्वेश्चनेबल, आई नो आई एम गुड देयर. वैसा CA बनना है, वो विजन रखो. और ऐसे रखड़ रखड़ के बाबा कैसे भी निकल जाए वैसा, तो वैसा विजन रखो, डिपेंड्स ऑन यू. पर जो तुम रखोगे वही तुम जाओगे. ओके, सो थिंक बिग बट वर्क इन स्मॉल स्टेप्स, राइट? बोलो. विजन एंड मिशन, ये SM का टाउट है. विजन एंड मिशन. मिशन बेसिक, विजन इज लाइक वेयर आई वांट टू गेट. मिशन इज लाइक मेरा एम क्या है वहाँ पे. ओके, व्हाट आई सी माई सेल्फ एज इज अ विजन. ओके, एंड मिशन टू लाइक आगे चल के उसको कैसे आई एम गोइंग टू इनकॉर्पोरेट इट बेटर, उसको बोलते हैं. बट ये SM का कंसेप्ट, जो तुम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ोगे, दिस इज वन बिग कंसेप्ट ओवर देयर. फाइन. सो माई विजन इज वेयर आई वॉन्ट टू रीच, व्हाट आई वॉन्ट टू अचीव, एंड मिशन इज दिस इज माई एम. ओके, एंड हाउ आई सी माई सेल्फ इज माई विजन. ठीक है, हम लोग को क्या अभी विजन, what I want to get, where I want to reach. Okay, उसको फिर we'll achieve. That's what we are saying. ठीक है. Now what? W, writing papers. बच्चों को बोल बोल के थक जाते, बाबा राइटिंग प्रैक्टिस करो, पेपर्स लिखो, नहीं सुनते, बिल्कुल नहीं सुनते. ठीक है, फिर बाद में पछताते. वाई? जब तुम कम से कम 3 पेपर्स सॉल्व करोगे, एंड व्हेन आई से 3 पेपर्स सॉल्व, आई डोंट टेल यू कि जाकर एक टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करो, ऐसा ही करो, वैसा ही करो. नो, तुम कोई भी पिछले 3 साल के पेपर्स उठा लो. ठीक है, पिछले 5 ईयर्स में से कोई भी 3 पेपर्स यू कैन पिक अप रैंडमली. ठीक है, इंस्टीट्यूट के पेपर्स, और 3 घंटा बैठ के लिखो उसको, खुद लिखो. मैं भी नहीं बोलती कि किसी और को बोलो या किसी में को देखो या व्हाटएवर, या मेरा चेक करो. नो, डू इट योरसेल्फ. 3 पेपर्स जब तुम राइट करोगे, अगर कोई सब्जेक्ट में वीक हो, 4 पेपर्स राइट करो. ठीक है, मम्मी को बोल देने का, मम्मा मैं अभी पेपर लिख रहा हूँ, देख तो अभी 3 घंटे. मम्मी विल वेरी हैप्पीली डू इट फॉर यू. ठीक है, शील मेक एवरीथिंग अरेंज में 3 घंटा, एंड फुल टाइम शील बी देयर ओनली 3 घंटे. ऑब्जर्व है ना ये सब चीज़ें, वाई नॉट? तो फिर 3 आवर्स बैठ के लिखो. 3 आवर्स में देखो क्या हालत होती है 3 घंटे लिखने में. इट इज़ नॉट अ ईजी टास्क, आई एम टेलिंग यू. एग्जाम में पूरा कन्फ्यूजन होता है, ये क्वेश्चन करूँ, वो क्वेश्चन, अरे करते करते कुछ तो टैली नहीं हो रहा, ओ माय गॉड अभी क्या करूँ. फील दैट फीलिंग बिफोर हैंड. जाकर एग्जाम में मत बनाओ उसको अपना. दैट इज़ नॉट माई लर्निंग ग्राउंड, दिस इज़ माई लर्निंग ग्राउंड. गॉट इट? यहाँ पे टेस्ट सीरीज करेंगे तो वहाँ पे यू विल बी प्रिपेयर्ड. पता है मैंने ऐसे गड़बड़ किया था, आई कुडंट मैनेज माई टाइम. फर्स्ट पेपर विल बी योर डिजास्टर, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ. डिजास्ट्रस रहेगा तुम्हारा पेपर, बिकॉज तुम ना टाइम मैनेज कर सकोगे, ना एक्यूरेसी देख सकोगे, ना कुछ होने वाला है. मैं तुमको अभी बोल सकती हूँ बात. लेकिन फर्स्ट पेपर व्हेन यू हैव डन इट, यू हैव एक्सपीरियंस इट, तुमको पता है तुमने गलतियाँ की है. सेकेंड पेपर तुम वो गलती तो रिपीट नहीं करोगे, थर्ड पेपर में तो नहीं रिपीट करोगे. यू विल गेट बेटर एंड बेटर. फिर जब जाकर तुम एग्जाम में तुम्हारा एक्चुअल पेपर दोगे, राइट ना, तो ऑब्वियसली यू हैव बीन प्रिपेयर्ड. ठीक है, उसको टेस्ट सीरीज मत बनाओ. डोंट लेट दैट बी योर लर्निंग ग्राउंड. जो करना इधर करो. मिनिमम 3 पेपर्स लिखना ही है. आई एम टेलिंग यू, सब आता है बच्चों को, लेकिन उस टाइम पे क्लिक नहीं होता है. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. डोंट लेट दैट हैपन. गॉट इट? तो व्हाट टू डू?
राइट पेपर्स, इंस्टीट्यूट के ही लेने के पेपर्स. इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स भी ऑनलाइन मिल जाते. एक बार पेपर हो गया, खुद ही ऑनलाइन आंसर्स निकालने का, खुद ही देख लेने का वेयर आई वेंट रॉन्ग. वाई टू ना इधर देखो उधर देखो, खुद अपने को ही जज कर लेने का, अरे हाँ मैंने गलती किया. यू नो योर सेल्फ द बेस्ट. रिमेंबर, कोई तुमको नहीं बोल सकता एक्सेप्ट यू. खुद को ही देख लो कि क्या है, फिर मम्मी को बता दो ऐसे ऐसे मैंने गलतियाँ की. योर मॉम विल ओनली टेल यू इंस्पाइट ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑल अबाउट सीए कि ये ऐसे मत कर, इसका ध्यान रख, उसका है ना. इट हैपन्स, सो लेट दैट हैपन लाइक दैट. क्लियर? सो राइटिंग पेपर्स मिनिमम 3. मिनिमम 3. गेट दैट क्लियर इन योर. लिख रहे हो ना तुम ये सब? देन आफ्टर दैट एक्सपीरियंस. एक्स, अब एक्स से ऐसा कोई वर्ड नहीं आ रहा था तो एक्सपीरियंस कर दिया मैंने. एक्सपीरियंस बेसिकली रिमेंबर एक बात होती है, foolish people learn from their own experience, right? And wise people learn from others' experience. तुमको क्या बनना है? Wise person, right? खुद जाकर अपनी उंगलियां जलाकर फिर आए, oh my God, I got burnt. भाई देखा है ना वहाँ पे बर्न होता है ना, मत डालो उधर हाथ. You know it. Learn from others' experience. That is smartness. Okay? So don't have to experience it yourself. Learn from others' experience. उनके मिस्टेक से खुद सीखो. ठीक है? When I am telling you all these points, मैंने भी कुछ मिस्टेक्स किए. I know I have not done it. Like writing papers मैंने खुद नहीं किया था. Not that I am very proud about it. मैंने गलत किया था, right? But after doing that, I realized कि I made a mistake. So I am telling you all that कि don't do it. वो same mistake तुम मत करो. ठीक है? So experience, like I said, learn from others' experience. Fair enough? Then comes why. What is that? Your SWOT analysis. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था I know myself the best. Correct or no? SWOT का full form मालूम है ना? Strength, weaknesses, opportunities and threat. I know my strength. I know my opportunities. I know my weaknesses. I know कि मेरा threat क्या है, मेरा टाइम पास कहाँ पे हो सकता है, मेरे को प्रॉब्लम कहाँ से आ सकता है. ठीक है? राइट और नो? आई नो व्हाट इज़ माई स्ट्रेंथ. मेरे को पता है थ्योरी मेरा वीक है, मेरे को पता है मेरा प्रैक्टिकल वीक है. यू हैव टू देन वर्क टुवर्ड्स इट. स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करो, वीकनेस को ओवरकम करो, अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो और थ्रेट को आइडेंटिफाई करके अवॉइड करो. दैट इज़ द वे इट हैज़ टू गो. समझा? एंड लाइक आई सेड, योर SWOT एनालिसिस ईदर यू विल डू इट और योर फैमिली कैन हेल्प यू डू इट. ठीक है? कर सकते हैं नहीं? और लास्ट एंड माई फाइनल पॉइंट, Z stands for zeal. Zeal मतलब enthusiasm, happiness, something that I want to achieve, right? एक एटीट्यूड होता है यार पढ़ना है, बोर रोज़ की तरह पढ़ना है, फ्रस्ट्रेटेड इडियोटिक पर्सन जैसे पढ़ना है. दिस इज़ वन एटीट्यूड. एंड सेकेंड, आई वांट टू लर्न समथिंग. अरे पढ़ना है, चल कुछ करते, कुछ नया सीखते. दैट एटीट्यूड. करना तो है इधर के, सीए बनना है, पढ़ाई करना है, पास होना है, वो तो सब है. हाउ यू टेक इट, दैट इज़ अप टू यू. इफ यू टेक इट एकदम सैडली एंड एज अ बर्डन तो तुम वैसे ही करोगे, धीरे धीरे रखड़ रखड़ के ही करेंगे. एंड इफ यू टेक इट लाइक नहीं, आई वॉन्ट टू डू इट एंड यू हैव दैट एंथुजियाज्म, लेट दैट बी. ठीक है? आई नो जैसे जैसे हम लोग और पढ़ते रहते वी डूइंग इट, वो कहीं ना कहीं वो नीचे होते रहता है. बट दैट्स हाउ यू हैव टू पेप योर सेल्फ अगेन कि नहीं बाबा करना है, यू हैव टू डू इट हैप्पीली. ठीक है? तो स्माइलिंग पढ़ाई करो, देखो कितना अच्छा लगता है. आई नो स्टडीज़ करते करते ऐसे स्माइल करना इज़ डिफ़िकल्ट, बट फिर भी वी कैन ट्राई. इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग एंड क्राइंग तो स्माइलिंग इज़ बेटर ना. बस वही करो. आई एम टेलिंग यू, खुशी खुशी करोगे तो एटलीस्ट तुम्हारा 20% उधर ही तुम्हारा ईजी हो जाता काम. राइट? क्रिबिंग एंड क्राइंग से कुछ नहीं होने वाला है. सो दैट इज़ वॉट वी आर सेइंग. ठीक है? सो जितना हो सके मैंने सब कवर कर दिया ये पॉइंट्स में. इस हिसाब से तुम प्लानिंग करोगे, पढ़ाई करोगे तो आई एम टेलिंग यू बहुत अच्छा होगा. फाइन? तुमको कुछ और पूछना है तुम्हारी साइड से? एनी क्वेश्चंस अबाउट हाउ टू स्टडी, वेट, व्हाट टू डू, एनीथिंग पूछ सकते हो. ओह, सो दैट एडिक्शन ऑफ व्हाट्सएप एंड एफबी को कैसे अवॉइड करना. एक यू नो एक मैंने पढ़ा था किधर तो भी एक चीज़ ये कि there's this वो ट्रिपल फिल्टर वाला एक स्टोरी था. दिस सोक्रेटस, हैव यू हर्ड ऑफ दिस लीडर, दिस ग्रीक पर्सन वॉज वेरी गुड ओरेटर, बहुत अच्छे से ना ही यूज्ड टू टॉक. तो एक बार उसके पास एक बंदा आया, ओके, एंड ही इज़ लाइक अरे आई वांट टू टेल यू समथिंग, आई वांट टू टेल यू समथिंग. तो दिस पर्सन, दिस सोक्रेटस, दिस लीडर टोल्ड हिम कि फर्स्ट
pass my triple filter. सबसे पहले tell me one thing, what you want to tell me, is it good or bad? So he said it's bad. So then he said second, is it true or not true? He's like, I'm not sure. Okay. And third, will it do any good to me? So he said, no, it won't. So he's like, fine, just get out. समझा? 3 things. एक 3 चीज़ों का ध्यान रखने का. क्या? First, what you're telling me, is it good or bad about something, someone, whatever. FV में good bad कोई फ़र्क पड़ता है? वो जाकर उधर खाना खा रहा है. What the hell I want to do with it? Okay, वो उधर I checked in this place. So what should I do? Correct? So it's good bad तो सवाल ही नहीं. Secondly, does it help me in any way? And true or false मुझे क्या मालूम है? And what I want to do. बस ख़त्म. ये 3 चीज़ों को ध्यान में रखने का. अगर ये कुछ काम की चीज़ है तो बोलो. राइट? आज जो मैंने बोला गुड था, तुम्हारे बेनिफिट में था, ट्रूथ था, फिनिश, इट्स वर्थ. कुछ भी ऐसे फालतू, नो, नॉट वर्थ. इट्स एज सिंपल. ठीक है? और कुछ भी नहीं. सब समझ गया? इम्प्लीमेंट कब से करने वाले? हाँ बोलो. कितने घंटे करना चाहिए क्लासेस के बाद? मतलब आर यू ट्राइंग टू आस्क मी लाइक क्लासेस होने के टाइम पे कितना पढ़ना चाहिए, होने के बाद भी कितना? ठीक है. 2 थिंग्स. उसको ई एंड ई का पॉइंट समझा था. ई एंड ई, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. आज में नहीं देखने का. व्हाट आई हैव टू सी इज आउटपुट ओरिएंटेड. ठीक है. फिर भी अगर क्लास के टाइम पे आई एम सीइंग तो एटलीस्ट मेरा होमवर्क और रिविजन ऑफ क्लास हो रहा है तो आई एम डूइंग गुड. जो भी मैं क्लास में कर रहा हूँ उधर जाके घर पे आई एम रिवाइजिंग, आई एम लर्निंग, डूइंग माई होमवर्क, आई एम गोइंग फाइन. और क्लास होने के बाद जब तुम्हारे 3 से 3.5 महीना तुमको फुल मिलता है ना पढ़ने के लिए, उस टाइम पे यू स्टार्ट विथ, यू कैन से अराउंड 8 to 9 hours शुड बी नाइस. स्टार्ट. और फिर एक 3-4 दिन 5-6 दिन में एवरी टाइम हाफ एन आवर बढ़ाते जाओ. ठीक है. सो इफेक्टिवली बाय द 3rd month यू शुड बी रीचिंग समवेयर अराउंड 12 to 13 hours शुड बी गुड इनफ. ठीक है. 12 hours पढ़ाई लगता हमको 12 hours, पर 24 में से 12 hours बोल रही हूँ मैं, आधा. बाकी का 12 hours में 6 घंटे सो जाओ. 6 घंटे बहुत हो गए सब करने के लिए. ठीक है. एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, सिर्फ आज में नहीं, सी इन द आउटपुट ऑल्सो कि मुझे वो मिल रहा है. अगर मैं आउटपुट टाइम स्मार्ट इनफ में 10 घंटे में कर लूँ वही आउटपुट, तो 2 घंटे एंजॉय करो, वो भी कोई टेंशन नहीं. ओके. सो सी इट इन दैट वे. सारे क्वेश्चन इसको ही है क्या? हाँ रुको 1 मिनट. हाँ, CA फाइनल, CA IPCC दोनों का आंसर एक ही है. ओके. इट्स नॉट नेसेसरी टू जॉइन ईच एंड एवरी क्लास. बस एक होता है क्लास में दैट व्हाट यू हैव इज, जो चीज़ मुझे खुद करने को से 200 hours लगेगा, वो क्लास में आई डू इट इन 100 hours. दैट्स द ओनली पर्पस ऑफ हैविंग अ क्लास. ओके. It depends on your time, it depends on your availability. If you're having something, my first choice is go for a class. But अगर नहीं हो रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो सेल्फ स्टडी से हो सकता है पढ़ाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड तुमको थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा. ये बात तो कंफर्म है. क्लैरिटी हो गया. पेपर सॉल्व करके देखने का, एम आई गोइंग ऑन द राइट पाथ. सिंपल थिंग है. जब मेरा आउटपुट सही जा रहा है, मेरे मार्क्स आ रहे हैं, मेरे को सब जम रहा है, तो आई एम गोइंग फाइन. ठीक है. बट आई कैन सेड माई फर्स्ट चॉइस इज ऑलवेज गोइंग टू बी कोचिंग टू सेव माई टाइम. दैट्स वेरी सिंपल. ओके. बट अगर नहीं पॉसिबल है, थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. बिल्कुल ज़रूरी नहीं. इंस्टीट्यूट के हिसाब से तो कोई भी सब्जेक्ट का क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं. बट आई थिंक दैट्स अ वेरी नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच. ओके. बोलो. ग्रुप 2 के साथ ग्रुप 1 की पढ़ाई देखो, पूरा तो नहीं हो सकेगा तुमको. ग्रुप 1 का मे बी विल टेक अप सम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. ठीक है. लाइक अकाउंट्स. ठीक है. यू कैन डू 1 week अकाउंट्स, यू कैन डू 1 week कॉस्टिंग FM, 1 week टैक्स, या फिर 1-1 घंटा दोनों का से थोड़ा थोड़ा, जस्ट दैट यू डोंट फॉरगेट थिंग्स. दैट इज़ द ओनली पर्पस. बट उसके साथ साथ ग्रुप 2 का ज़्यादा पढ़ाई करो. बिकॉज क्या होता है ना, अभी ये जो 3 महीने तुमने ग्रुप 1 को दिए, इफ़ आई आस्क यू 3 months डाउन द लाइन, अभी 3 महीने हो गए ऑलमोस्ट, कितना कॉन्फिडेंस है तुमका ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स में? तुमको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ. कॉन्फिडेंस लेवल लो, मीडियम, हाई? मीडियम और लो के बीच में, आई थिंक समवेयर इन दैट.
हाई तो मुझे बोलना मत, मेरे को तो उल्लू मत बनाओ तुम, ठीक है? मेरे को पता है क्या है, एक तो लो है बट यू विल नॉट एडमिट इट, तो तुम उसके ऊपर थोड़ा फीलिंग गुड, थोड़ा एवरेज, आई एम गुड। तो अब ये पॉइंट है, ये जो 3 मंथ्स में तुमने मिस्टेक किया, डोंट रिपीट इट इन योर नेक्स्ट 2.5 मंथ्स, क्योंकि ग्रुप 2 को सिर्फ 2.5 मंथ्स लगता है। उसमें व्हाट यू कैन डू इज अलॉन्ग विथ योर क्लासेस, जो तुमने मिस्टेक अभी किया ना, डोंट रिपीट इट, अलॉन्ग विथ योर क्लासेस गिव मोर टाइम टू ग्रुप 2, तो वो 2-2.5 महीने में तुम्हारा ग्रुप 2 तो पक्का हो जाएगा, है ना? और ग्रुप 1 का, बिकॉज आई डोंट वांट टू लूज टच, कोई भी जो तुमको अच्छा लगता है सब्जेक्ट, वट एवर यू लाइक, थोड़ा थोड़ा करते जाओ उसको। आई थिंक टैक्स है जो हम लोग भूल जाते हैं, यू नो, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, FM हो जाता है मैनेज, थोड़ा टैक्स कर लो, इट्स वेरी वास्ट ऑल्सो, तो तुम वो कर सकते हो। हाँ, नो 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 नो, ऐसा कौन बोलता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैन तक 3 सब्जेक्ट्स होंगे तो अगले 3 महीने क्या करूँ मैं? अगले 3 महीने तो करना है ना। नहीं, 3 सब्जेक्ट्स हो ही नहीं पाएंगे। जो भी तुमको बोल रहा है उनको बोलो तुम करके बताओ, तुम करके बताओ, बोलो नॉट पॉसिबल। वाई इट्स नॉट पॉसिबल? बिकॉज 3 सब्जेक्ट्स आर, एक तो वास्ट, सेकेंडली अलॉन्ग विद दैट योर 3 सब्जेक्ट्स आर गोइंग ऑन, अलॉन्ग विद दैट वो 3 सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप 2 का तुम्हारा होमवर्क भी चल रहा है, रिविजन भी चल रहा है, सो इट्स नॉट पॉसिबल। सो डोंट बी इम्प्रैक्टिकल एंड डोंट बी अननेसेसरीली ऑप्टोमिस्टिक। हाँ, हाफ सब्जेक्ट मैं देख सकती हूँ, हाफ इज़ पॉसिबल, उतना करो, ठीक है ना? जो तुमको लगता है इंपॉर्टेंट, आई विल फॉरगेट, लाइक PGBP, कैपिटल गेन्स मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को क्या लगता है, कभी भी पढ़ा तो आ जाएगा ना, दोज थिंग्स यू डू। कैपिटल बजटिंग आई माइट फॉरगेट, वो करो तुम, जो तुमको लगता है डिफिकल्ट है, थोड़ा थोड़ा करते रहने का। ओके, द रेशो 70-30 in those 2.5 months, 70% group 2 को टाइम, 30% group 1 को, and that gets reversed when you start your study leave of 3 months, because you have just done your group 2, तो सिर्फ रिविजन करना है तुमको, और ये 70% करना है, that's the tact of doing it, ठीक है? और बोलो 4 सब्जेक्ट्स किया तो ITSM को मैं अलग पकड़ती ही नहीं हूँ, बिकॉज मैं IT को पकड़ती नहीं हूँ। ओके, चलो एनीवेज बोलो। एज़ कम्पेयर टू अदर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट बचा एडवांस, है ना? हाँ, तो मुझसे 7 सब्जेक्ट्स की बात करो, ठीक है? देखो, थ्योरी में एवरीवन कैन नॉट स्कोर, उसका रीज़न ये होता है, थ्योरी समझता सब कोई, बट दे कांट रिप्रोड्यूस इन द एग्जाम। वो होता है कि हाउ टू राइट इन द एग्जाम। सी, इट्स वेरी ईजी फॉर मी कि तुमको 4 पॉइंट्स दे दूँ, इसको रटो 4 पॉइंट, फिर 4 बार बोलो, क्या है उसमें, व्हाट हैव यू अंडरस्टूड। एग्जाम में जब वो आता है, आई गेट जम्बल्ड कि क्या क्वेश्चन पूछा है। आई एम टेलिंग दिस स्पेशली इन ITSM, आई एम टेलिंग यू दिस। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बच्चों को वही होता है, दे जस्ट डोंट नो व्हाट टू आंसर वेयर। सो वो अवॉइड करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड योर कंसेप्ट। बैक टू माई पॉइंट नंबर, कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाला। तो उसके लिए फिर तुमको कोई इशू नहीं आएगा। और राइटिंग के लिए, राइटिंग प्रैक्टिस इज द की। जो राइटिंग प्रैक्टिस, हम लोग जैसे थ्योरी में प्रैक्टिकली अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को सॉल्व करते, हम थ्योरी में आंसर्स लिखते हैं क्या? हम लिखते हैं क्या? नहीं। तो फिर लोब साइडेड हो गया ना वो, कि प्रैक्टिकल को तुम इतना टाइम दे रहे हो, फिर थ्योरी को तुम इतना इग्नोर कैसे कर रहे हो? तो ऑब्वियसली मैं थ्योरी को इतना टाइम नहीं दूंगी जितना मैं मेरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को देती हूँ, बट आई विल डेफिनेटली हैव टू गिव गुड अमाउंट ऑफ टाइम दे। तो वो करो, तुम्हारा अपने आप सॉल्व होगा। गिव द सेम इंपॉर्टेंस टू ITSM एंड योर ऑडिट एज यू गिव टू योर अकाउंट्स। सेम, ज़्यादा नहीं, कम नहीं, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझा? प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग का सीक्वेंस वैसा चलता है, अकाउंट्स, फिर ITSM, फिर 3 नंबर पे ऑडिट। ओके, ग्रुप 1 में वी थिंक ऑफ पहले अकाउंट्स, कॉस्टिंग, फिर FM, टैक्स, एंड फिर लॉ लास्ट में। फिर जो तुम लास्ट में रखोगे उसको तुमको प्रॉब्लम आना ही ना। यू गॉट माई पॉइंट? सो गिव इट इक्वल इंपॉर्टेंस, बस इतना ही पॉइंट है, ठीक है? एज अ ऑडिट टीचर टिप्स जो रहेंगे वो ऑडिटिंग में ही रहेंगे ना। हाँ, एंड आई एम नॉट ओनली एन ऑडिट टीचर, आई कैन गिव यू इन अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। या जनरली जो भी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है वैसे ही, जो मैंने बोला वैसे ही पढ़ना है तुमको, ठीक है? और बोलो। बोथ ग्रुप्स एट अ टाइम और 1 ग्रुप एट अ टाइम। 9 मंथ्स, 9 मंथ्स होते तुम्हारे पास, बराबर है कि नहीं? या रॉन्ग बोल रही हूँ मैं? 9 मंथ्स होते, राइट? 9 मंथ्स में 3 मंथ्स तुम्हारे फर्स्ट ग्रुप हो गया, बराबर है? 3.5, चलो ठीक है, दिवाली आ गया एंड ऑल दैट। बचे कितने? 5.5 मंथ्स। डू यू नीड 5.5 मंथ्स टू डू ओनली दोज 3.5 मंथ्स का स्टडीज़? नहीं। मतलब व्हाट विल हैपन, यू विल बिकम लाइक, यू नो, जितना जगह देंगे ना उतना फैल जाते हैं स्टूडेंट्स।
तुमको अगर मैंने दिया कि एक दिन में ये काम करना है और तुमको वही चीज़ बोला 2 घंटे में करना है, बिलीव मी तुम वो एक दिन में कर सकते हो वही काम जो तुम 2 घंटे में भी कर सकते थे. वाई? बिकॉज योर वर्क एंड योर एफर्ट्स फिल द टाइम. जितना तुम टाइम दोगे खुद को उतना यू विल स्प्रेड लाइक एनीथिंग. इसके लिए आई डेफिनेटली रेकमेंड दोनों ग्रुप्स एनी डे एनी टाइम टू एनी स्टूडेंट. वाई? बिकॉज डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ. सिंपल है पॉइंट. ओके हाँ, ऐसा हो सकता है कि मेरा फोकस इज मोर ऑन वन ग्रुप, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गिव बोथ. मैंने सेट ऑफ में बच्चे देखे. सेट ऑफ मालूम है ना तुमको, सेट ऑफ वाला कंसेप्ट. सेट ऑफ में इधर फर्स्ट ग्रुप में मिले 220, इधर मिला 130, हो गए पास. यू गॉट माई पॉइंट. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इफ़ यू स्कोरिंग एंड यू कैन डू गुड. आई हैव सीन स्टूडेंट्स क्लियरिंग बोथ ग्रुप्स इन वन शॉट विदाउट गिविंग लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर द सेकेंड ग्रुप. बिकॉज फर्स्ट ग्रुप हमेशा फोकस में रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं. दैट नो टू वेज अबाउट इट. दैट विल बी देयर बिकॉज मेरा आर्टिकलशिप के लिए वो नेसेसरी है, तो आई विल डेफिनेटली बी मोर फोकस. बट आर्टिकलशिप में भी अगर तुमको जाना है, दे विल प्रीफर व्हाट, बोथ पास स्टूडेंट्स, दोनों. ठीक है. सो कभी भी ट्रायल दोनों का करो एंड दैट ऑलवेज यू हैव दैट इन योर हैंड. बाद में कि नहीं हो रहा है पापा लास्ट मंथ में, नहीं आई वांट टू फोकस, यू ऑलवेज हैव अ चांस ऑफ लेटिंग इट गो. बट फॉर्म में ही भरा नहीं मैंने और बाद में मेरे को लगा अरे क्या करूँ, तो देन देयर इज़ नो यूज़. एंड खुद के मन से पूछो, जो 3.5 मंथ्स में उसको 5.5 मंथ्स लगेगा क्या पढ़ने को? विल यू नीड इट? नॉट रियली. सो देन इट्स डेफिनेटली रिकमेंड. मेरिट में आना है तो भी दोनों ग्रुप्स है, सेट ऑफ में पास होना है तो भी दोनों ग्रुप्स है. इवन इफ यू हैव लाइक यू नो वांट टू गो फॉर ऑफिस एंड आर्टिकलशिप, दे विल प्रेफर बोथ ग्रुप्स. सो ट्राई दैट. पहला ट्रायल विल ऑलवेज बी दैट. अगर मुझे लगता है एंड में नहीं हो रहा है, आई एम रियली गेटिंग इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. एनीवे सेकंड ग्रुप सेकंड ही आने वाला है ना. फर्स्ट ग्रुप अच्छे से देने का, सेकंड में जो होगा देखेंगे, दे देने का, शॉर्ट दे देने का एक. ठीक है. और बोलो, और कोई क्वेश्चन? पक्का? डन देन. आई होप द सेशन वॉज यूजफुल फॉर यू. हाँ, कुछ फ़ायदा हुआ? कुछ पॉजिटिविटी आई? यस और नो? कुछ करने का है या नहीं अभी, या सिर्फ सोचते सोचते? नहीं ना, करना है अभी. ठीक है. सो ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी स्टडिंग टू यू. ओके, ठीक है.